Evening, dear members. First of all, really heartfelt thank you to each one of you for the responses for the questions we had asked previously कि क्या topic हमें रखना चाहिए, because end of the day this group is for all of us to share, to feel safe to share everything and learn from each other's experience. So as schools are मैं ना बीच बीच में हो सकता है रुकते रहो because I'm admitting the participants also. So as schools prepare to reopen, this brings a kind of mixed anxiety and excitement for all of us parents and caregivers. So इसलिए we thought that this is the best time to take this topic of school readiness. It can be either for very small kids who are just starting nursery or who are transitioning from the primary to the preparatory to primary sections. So school readiness is important for all the kids. So and that's why we have chosen this topic, and we are deeply touched and proud to share that the speaker of this session is none other than one of our own member, Shilpi Roy Chowdhury. So thank you so much for joining us. Just a few words about her, and then she can take her little bit of introduction about herself. So my first memory of Shilpi was I met her online around 5 years back, and since then she has been one of the most very important pillars of support and for growth of my child. And like that, she has, how Sarika had told, no, that she has taken many parents under her huge wings. So she is a mother first to a very bright, beautiful boy on the spectrum. Her journey is one of many of us can relate to, full of questions, learnings, growth. She has walked this path, faced the unknown, and turned her personal experience into purpose. So thank you so much, Shilpi, for joining us today. Over to you. Okay. Hello, everyone. Thank you, Chaitra, for that wonderful introduction. And thanks to Sarika for giving me this opportunity, this platform. And so, yeah, I am Shilpi. I am a mother of a 12-year-old boy who's on the spectrum. And he's a very wonderful and a handsome boy. He's on the 7th grade and goes to the mainstream school. Yeah, the journey was initially it was very, as we all are experiencing as of now, and we have experienced journey itna easy to hota nahi hai. But yeah, we are overcoming that. We are working, and now initial days I never imagined after the diagnosis कि मेरा बेटा स्कूल जा सकता है, honestly speaking. But every हर एक ऑब्स्टिकल्स को हम पार करते करते अब ये है कि बच्चा मेन स्ट्रीम में है, इंडिपेंडेंट है, अपने आप स्कूल जा रहा है, एग्जाम्स दे रहा है. जहाँ पहले आधे घंटे का एग्जाम देना यूज टू बी अ टारगेट, अभी 3 घंटे बैठ के 80 मार्क का पेपर का एग्जाम दे रहा है. एंड ही इज पासिंग ऑल बाय हिमसेल्फ विदाउट एनी मॉडिफिकेशन. ही इज डूइंग ऑल बाय हिमसेल्फ. सो येस, आई हैव एक्सपीरियंस दिस फेस जो अभी काफी सारे पेरेंट्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं. इनिशियल बच्चा वेट नहीं कर रहा, सुन नहीं रहा, स्कूल में कैसे भेजूं. डोंट वरी, हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है. एंड करेंटली आई एम वर्किंग विथ ऑटिस्पेस. वहाँ इट्स एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. मैं डिजिटल लिटरेसी क्लासेस लेती हूँ. आवाज़ एम्पावरमेंट करते हैं. आवाज़ के यूज़ करके हम बच्चों को सिखाते हैं, पेरेंट्स को एम्पावर करते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट पेरेंट्स का एम्पावरमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है इस जर्नी में. सो Chaitra, कैन वी स्टार्ट द स्लाइड देन? सो आई हैव प्रिपेयर्ड अ स्मॉल स्लाइड, क्योंकि जस्ट लाइक आवर किड्स मुझे भी ऐसा लगता है कि जितना चीज़ें विजुअल हो उतना लर्निंग अच्छी होती है. मेरे लिए तो होती है, फिर वो कॉन्क्रीट बन जाती है इसीलिए. सो आज का टॉपिक मुझे दिया गया है स्कूल रेडीनेस फॉर आवर किड्स ऑन द स्पेक्ट्रम. कैसे हम स्कूल रेडीनेस करेंगे, क्या करते हैं, एंड स्कूल रेडीनेस होता क्या है. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है. So, school readiness means when a child is ready to make a easy and successful transition. The word transition is change, बदलाव. घर के माहौल से निकलकर स्कूल में जाना. यहाँ तो माँ है, वहाँ तो कोई नहीं है. सो दिस ट्रांजिशन कितना सक्सेसफुल होगा, कैसे करेगा बच्चा, उसके लिए हमें प्रिपेयर कैसे करना है बच्चे को. वो एक दिन में तो नहीं होगा, इट्स गोइंग टू टेक टाइम. सो क्या क्या हमें करने होंगे. सो let's go ahead. Next slide, Chaitra, please.
ऑल राइट। सो हर चीज को सीखने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, तो इसमें जाने के लिए, इसमें स्कूल रेडीनेस के लिए भी कोई प्री रिक्विजिट्स हैं हमारे। मैंने 5 टॉप पॉइंट्स लिखे हैं और इसके सब टॉपिक्स में एक एक करके समझाती जाऊंगी। फर्स्ट इज प्री लर्निंग स्किल। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए होता है, मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही एकेडमिक्स आएगा, उसके बाद रीडिंग, राइटिंग एंड सेल्फ केयर। सो व्हाट इज प्री लर्निंग स्किल, हम पहले वो जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये प्री लर्निंग स्किल ही इनिशियल स्कूल नहीं, ये हमेशा के लिए बच्चे के लिए रहेगा, यही काम करता है। प्री लर्निंग स्किल्स क्या है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज चाइत्रा। सो प्री लर्निंग स्किल्स में अटेंशन आ गया, आई कांटेक्ट आ गया, सिटिंग टॉलरेंस, इमिटेशन है, कंप्लायंस, कंप्लायंस मतलब इंस्ट्रक्शंस फॉलोइंग करना, एंड टर्न टेकिंग एंड वेटिंग, ऑल द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो हमारे बच्चे के स्कूल रेडीनेस के लिए जरूरी है। सो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, बाय अटेंशन व्हाट डू वी मीन। अटेंशन हमारे बच्चों का, स्पेक्ट्रम वाले बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अभी जैसे आप सारे कुछ भी काम कर रहे हो लेकिन आप सुन रहे हो, दिस इज कॉल्ड जॉइंट अटेंशन। मैं बोल रही हूँ लेकिन आप लोग काम जरूर कुछ करोगे, आप सुन रहे हो, देख रहे हो, ये है प्रॉपर अटेंशन। स्कूल में जाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इवन इन डेली लिविंग के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अटेंशन हम कैसे बढ़ाएं? अटेंशन बढ़ाने से पहले हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि हमारे बच्चों के सेंसरी इश्यूज इतने ज़्यादा होते हैं, सो कोशिश हम ये करेंगे डिस्ट्रैक्शन हम जितना कम कर सके। अगर आप घर पे इसको सिखाना, पहले तो घर पे करना पड़ेगा, ये तो आप अभी पेरेंट्स जान ही गए होंगे अच्छे से। कोई भी चीज़ एक दिन में हमारा बच्चा नहीं सीखेगा, दे नीड्स रिपीटेशन। रेपिटेशन इज द सक्सेस फॉर आवर किड्स। जो चीज़ आप सिखा रहे हो, रिपीट रिपीट एंड रिपीट। सो पहले आपको घर से शुरू करना पड़ेगा। तो अटेंशन, जब आप घर पे कोई एक्टिविटी करा रहे हो या टेबल टॉप एक्टिविटी करा रहे हो, ट्राई टू हैव अ लेस डिस्ट्रैक्टिंग एनवायरनमेंट। पर्दे बोलिए, कलर बोलिए, जो भी है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होने चाहिए। इनिशियली जब मेरे बेटे के समय, जब मैं उसको कराती थी, मेरा एक टेबल, छोटा सा टेबल था, एक छोटा सा चेयर था, 2 छोटे चेयर्स थे, और ऐसे रूम में मैं बैठती थी जिसमें ज्यादा सामान ना हो, जिससे वो डिस्ट्रैक्शन ना हो। बैक रेस्ट देना बहुत जरूरी है हमारे बच्चे कब, क्योंकि उनके कोर मसल्स यूजुअली अधिकतर बच्चों के वीक होते हैं। तो अगर चेयर में बैक रेस्ट नहीं होगा ना, तो वो ऐसा होगा, बेड में बिठाओगे ऐसा बैठेगा, अटेंशन दे ही नहीं पाएगा, फिर वो धीरे धीरे लेटेगा। सो हमें अटेंशन चाहिए, बढ़ाना है। बैठाएंगे ऐसी जगह पे जिसमें उसको प्रॉपर बैक रेस्ट मिल रहा है। चेयर ऐसी रखेंगे जिसमें वो पाँव नीचे तक दे रहा है। हवा में सस्पेंडेड चेयर रहेगा, बच्चे को ग्रेविटी फील नहीं होगी, वो अनकंफर्टेबल होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। बैक रेस्ट जब आप दे रहे हो, या बैक जो चेयर की रहती है, पीठ दीवार में होनी चाहिए, दीवार रहनी चाहिए, नहीं तो चेयर ऐसे 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 करके हम भाग जाते हैं। तो हमें भगाना नहीं है, बच्चे को नहीं भागने देना है। तो पीठ बच्चे की दीवार की तरफ होनी चाहिए, और कोशिश करेंगे आसपास कोई मेजर डिस्ट्रैक्शन ना हो। कोई भी साउंड जो आपको नहीं लग रहा है बट हमारे बच्चे को डिस्टर्ब कर सकता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन, कि उसको पता होना चाहिए आपको, या आप कोशिश करें पता करने की, अगर डिस्ट्रैक्शन बाई चांस कुछ हो रही है तो वो हटा दीजिए। उसके अलावा जब हम काम करते हैं, काम को एंजॉय करना है। हमारे पेरेंट्स, मतलब एज मदर्स, हमें मैक्सिमम मदर्स को ही करना पड़ता है, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, क्योंकि फादर्स इतना नहीं कर पाते, क्योंकि मदर एक ऐसी केयर गिवर होती है जो हमेशा बच्चे के साथ रहती है, बच्चा इज कंफर्टेबल विद द मदर। सो मेक द एनवायरमेंट लेस स्ट्रेसफुल, इंजॉय द प्रोसेस। एंड ऑफ द डे ही इज अ चाइल्ड, डोंट प्लीज फॉरगेट कि एक एएसडी का टैग लग गया तो बस, नो नो नो, ही इज अ बच्चा, जस्ट लाइक एनी अदर चाइल्ड, इज अ बच्चा। इंजॉय द प्रोसेस, एंड गोल्स ऐसे लीजिए जो अचीवेबल आपके हो। ये मत करो कि एक दिन में मैं A to Z कर लूंगी, एक महीने में A to Z। ब्रेक इट डाउन, छोटे स्टेप्स लेंगे। मैं एक महीने में ABC कर लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल, या मैं एक महीने में 8B C लूंगी, 1 2 3 लूंगी। ब्रेक इट डाउन, स्मॉल स्मॉल, जो गोल्स अचीवेबल भी हो, और बच्चे भी आराम से इंजॉय करें, आप स्ट्रेस में ना हो, बिकॉज आप स्ट्रेस में आओगे काम नहीं होगा। ये अभी नहीं, चाइत्रा वही वाला चल रहा है, अटेंशन वाला, गो अप।
सो ये बहुत जरूरी है, कीप द लेंथ एक्टिविटी शॉर्ट, ज्यादा नहीं कराना है आगे। ये इसके बाद वाला, या कीप द अटेंशन शॉर्ट, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। कीप अ रीइंफोर्सर, इनिशियली आपको जब अटेंशन बनाना है, कुछ भी कराना है, रीइंफोर्सर्स रखने पड़ेंगे आपको, नहीं तो बच्चा भाग जाएगा। और रीइंफोर्सर्स आपको ऐसे टाइम पे देने हैं, फॉर एग्जांपल आपने बच्चे को ए सिखा रहे हो या पॉइंटिंग सिखा रहे हो, तो उसके बाद जैसे ही वो कर रहा है, प्रेज, ऐसी प्रेज करो जिससे कि उसको लगे मैंने क्या काम कर दिया है, मैंने इतना महान काम कर दिया कि इस औरत को क्या हो गया, इतनी उछल क्यों रही है। ये जरूरी है, ये नौटंकियां बहुत जरूरी है। ये टेस्टेड नौटंकियां हैं जो मैंने अपने बच्चे के साथ किया है। तभी आपके साथ उसका अटेंशन बढ़ेगा, उसका अटेंशन और आपकी कंप्लायंस बढ़ेगी, बच्चा इंजॉय करेगा आपको। ही नीड्स टू एंजॉय द एक्टिविटी, इट कैन नॉट बी अ बोरिंग एक्टिविटी। इसके साथ जो बच्चे को पसंद है उससे करवाओ। फॉर एग्जाम्पल आपने ए बी सी डी कराया या ए बी कराया, उसके बाद अगर उसको बबल पसंद है, गिव हिम अ बबल, बबल ब्लोइंग कराओ, उससे अटेंशन उसकी बढ़ेगी। जिसको उसमें मजा आ रहा है वो आप करवाओ, ना कि आप अगर करोगे टच बॉटल, टच वैसलीन, टच ग्लास, इट्स बोरिंग। ओके स्माया, नाउ क्या आएगा, लेट्स टच बॉटल। सो आप समझ रहे हो, वॉइस मॉड्यूलेशन करोगे, थोड़ा नौटंकी ड्रामा करना पड़ेगा, बच्चों को मजा तो आना चाहिए। टच बॉटल, टच वैसलिन, इट्स वेरी बोरिंग, हमें बोरिंग लगती है तो बच्चों की तो लगेगी। सो अटेंशन हम ऐसे करके डेवलप कराएंगे। टाइम लगता है इसमें, बट इट इज अचीवेबल, होता है। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, हमारे ऑनलाइन क्लास में भी मैंने देखा है, अपने जब मैं स्कूल्स में थी तब देखा है, मैंने अपने बेटे को भी देखा है। डिस्ट्रैक्शंस हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियल जब हम कराते हैं डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए, बट जब आपका बच्चा एक अच्छे सिटिंग टॉलरेंस, वेटिंग उसकी आ गई है, अटेंशन अच्छा आ रहा है, तब हम डिस्ट्रैक्शंस लाएंगे। कैसे? बिकॉज स्कूल इज वेरी केओटिक, क्लास में बहुत आवाज होती है, यूट्यूब में आपको बहुत साउंड्स मिल जाएंगे, क्लासरूम साउंड्स निकालो यूट्यूब में चला दो, उसमें बच्चे को पढ़ाओ सो दैट उसमें वो अटेंशन देगा। बट नॉट नाउ, एकदम लेटर स्टेज में जब बच्चा आपका बहुत ज्यादा सेटल हो चुका है, क्योंकि बच्चे को फिर स्कूल में दिक्कत होती है, साउंड्स में दिक्कत होती है, उसकी आदत डालने के लिए यू कैन डू दिस लेटर स्टेज। बट अभी इनिशियली बच्चे को आपको बिठाना बहुत जरूरी है उसकी पसंदीदा एक्टिविटीज के साथ। नेक्स्ट इज आई कांटेक्ट, जो हमारा कोर सिस्टम इशू हमारे ऑटिज्म में होता है, बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, ये एक रेड फ्लैग्स में भी माना जाता है ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, आई कांटेक्ट ना देना। कैसे इंप्रूव करें आई कांटेक्ट देना? सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चे के आई कांटेक्ट के लेवल पे आइए। आप उधर खड़े हो, बच्चा नीचे है, नॉट गोइंग टू वर्क, आई हैव ट्राइड, नीचे आओ, उसके लेवल पे आओ। इसलिए मैंने जब स्टार्टिंग में अटेंशन के लिए जब बोला कि मेरे पास दो चेयर्स थे जो छोटे चेयर्स थे, जिसमें मैं उसके साथ उसके लेवल पे बैठती थी। जब आप आई कांटेक्ट आपको चाहिए तो उसके लेवल पे आपको बैठना पड़ेगा, बेंड डाउन टू द लेवल ऑफ द चाइल्ड, देन इट विल कम। ऑलवेज अप्रिशिएट व्हेन द चाइल्ड इज गिविंग, एक 2 सेकंड का भी दिया ना, वाह, अरे स्माइल, तुमने मुझे देखा, मम्मा को देखा बच्चा, मेक दिस टाइप ऑफ एप्रिसिएशन, कहाँ पता चलेगा उसको उसने क्या कर दिया। सो मेक दिस टाइप ऑफ प्रेज द चाइल्ड। द की फंक्शन, द की प्लस फैक्टर जो होता है, जो हमारे बच्चे को उसकी दुनिया से इस दुनिया में लाने में मदद करता है, प्रेज करो। वो छोटी छोटी एफर्ट्स जो कर रहा है ना, प्रेज करो, इतनी प्रेज करो कि उसको लगे अरे ये लेडी तो इतनी खुश हो जाती है, मैं थोड़ा सा कुछ करता हूँ, उसको ये लगना चाहिए। प्रेज द चाइल्ड अ लॉट लॉट लॉट। स्माइल, अगर आपका बच्चा थोड़ी देर के लिए देख रहा है, वाह, यू आर स्माइलिंग एट मी, थैंक यू नंदा, थैंक यू सो मच। सो कीप मोटिवेटिंग, प्ले गेम्स, Peekaboo, where are you? These games. कहाँ हो स्मयान? Peekaboo. Do these things नौटंकियाँ. They will enjoy it. Make एक पेपर ले लो, उसमें छेद कर लो, कहाँ हो, कब ये मैं हूँ। Do these type of games. They enjoy. करो, लेकिन ये तभी करो जब आप, बच्चा आपके साथ थोड़ा सा बैठ रहा है, थोड़ा वो सेटल्ड है, थोड़ा सुनने में इच्छा है, तब करो। ऑल द टाइम इफ यू डू पीकाबू पीकाबू,
वो उतना नहीं कर पाएगा, पहले उस लेवल पे ले आएंगे फिर जनरलाइज करेंगे चीजों को। दैट रियली रियली हेल्प। और गाने, कुछ बच्चों को गाने बहुत पसंद है, राइम्स बहुत पसंद है, सिंग अलोंग विद देम। अगर कर रहे हैं, यू सिंग अलोंग विद देम। जैसे ही आप उसको कॉपी करने की कोशिश करोगे, वो फटाक से आपको देखेगा, वाओ तुमने मुझे देखा, वाओ वेरी गुड वेरी गुड। अप्रिशिएट द चाइल्ड। आई कांटेक्ट, मैंने अपने बच्चे के साथ ये देखा है, जैसे 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 कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बच्चे की वोकैब बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, कनेक्शन विद द एनवायरनमेंट बढ़ता है, वो बढ़ेगा। सो डोंट वरी, आई कांटेक्ट बढ़ेगा। बट हम छोड़ नहीं सकते, ये इनपुट्स जो मैं आपको दे रही हूँ या आपके ओटी जो आपके साथ कर रहे हैं, उससे फर्क पड़ता है। आई कांटेक्ट ग्रेजुअली आ जाता है, अच्छा आता है फिर उसके बाद। नेक्स्ट इज सिटिंग टॉलरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हमारे कुछ बच्चे फेस करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ फेस करते हैं। तो ये इटसेल्फ इज अ बिग टॉपिक। सिटिंग टॉलरेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं जितना छोटा कर सकती हूँ मैं कोशिश कर रही हूँ। इट्स अ स्लो प्रोसेस, इसमें टाइम लगता है। सो रीइंफोर्सर्स हमें रेडी रखने पड़ते हैं। अगर आपने, आपका जो बच्चा, कोई एक सीट या चेयर उसकी कलर की एक फिक्स कर दो। ये आपके ओटी वाले भी करवाएंगे, ओटी वाले ऐसे ही कराते हैं, मैंने जो देखा है मैंने उसी से सीखा है। ओटी वाले क्या करते थे, एक ग्रीन चेयर दे दी है, वहीं बैठोगे, वेटिंग टाइम, बच्चे को वो सिखाया जाता है एंड सिटिंग भी वहीं पे कराया जाता था। सो सिटिंग टॉलरेंस के लिए जैसे आपने घर पे बिठाया और आप बोलोगे ओके, मैं 5 काउंट करूंगी, हम बैठेंगे। तो पहले पहले तो काउंट थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी, जिससे कि उसको लगे मैंने अचीव किया। ऑलवेज ऑडिटरी एज वेल एज विजुअल फिंगर्स का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज दिस विल गिव प्रिडिक्टेबिलिटी टू देम, कि ये खत्म हो गया मतलब मेरा काम हो गया। गिव प्रिडिक्टेबिलिटी टू देम। सो 1 2 3 आपने फास्ट फास्ट किया। फिर जैसे आप देख रहे हो 5 तक वो आ गया है, बैठने लगा है, भले ही बॉडी मूव कर रहा है, वो बैठ रहा है। हम फिर अब फिर से शुरू करेंगे उसको बढ़ाने के लिए, 5 में ही बढ़ाएंगे। कैसे? 1, वाह क्या बढ़िया बैठे हो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अब आया नंबर टट 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 2। आप देख रहे हो 1 से लेके 2 में कितना टाइम लग गया। So, ऐसे करके करके स्लोली 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 वी विल इंक्रीज। जब इसमें वो कंफर्टेबल हो रहा है, देन हम 10 तक का काउंट भी ले आएंगे। स्लो करते जाएंगे प्रोसेस को, पहले फास्ट फास्ट, क्योंकि हमें उसको कॉन्सेप्ट देना है, अचीव कराना है, प्रिडिक्टेबिलिटी देनी है। ग्रेजुअली वी विल स्लो डाउन। ऑल्सो वन मोर वे यू कैन डू द सिटिंग टॉलरेंसेज। अगर बच्चे को कलरिंग करना पसंद है, लेट हिम डू कलरिंग। क्राफ्ट एक्टिविटी, आपने कागज फाड़ा, वो भी फाड़ रहा है, कोई उसकी पसंद की एक्टिविटी अगर है साथ में करो, उससे सिटिंग टॉलरेंस बढ़ेगी, सस्टेन बढ़ेगा। अच्छा, कलरिंग पसंद है इसका मतलब ये नहीं कि इतना बड़ा ड्राइंग दे दिया कि वो कलर कर करके आधा करके छोड़ गया। ऐसा दो जो अचीव कर ले, फिनिश करेगा, सिटिंग भी होगी। काम आधा छोड़ना नहीं है। सपोज अगर इतना बड़े सर्कल का उसका सिटिंग टॉलरेंस है तो इतना देंगे, ग्रेजुअली वो सर्कल बढ़ता जाएगा क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। अचीवेबल टारगेट्स देनी है एंड बच्चे को फिनिश का कॉन्सेप्ट भी देना है। माइंडेड, आधा करके छोड़ देना इज नॉट अ फिनिश कॉन्सेप्ट, ही हैज टू फिनिश इट ऑल्सो। सो काम हम ऐसा देंगे कि वो फिनिश भी करे और सिटिंग भी बढ़े। सो यू पेरेंट आर द बेस्ट पर्सन टू जज कौन सा काम उसको हम दे सकते हैं। सो आप कलरिंग करा सकते हो, थेरापुटी दे सकते हो, कोई भी फाइन मोटर एक्टिविटी आप दे सकते हो, सेंसोरियल एक्टिविटी दे दो, सैंड से खेलना, वो भी सिटिंग में ही आ रही है। सो इंक्रीज द सिटिंग टॉलरेंस। अगर नहीं बैठ रहा है तो गिव अ फिजिकल प्रॉम्प्ट और बैठो। फिजिकल प्रॉम्प्ट भी, चलो साथ में मम्मा बैठती है, ये नहीं कि बैठ तू यहाँ पे, ये मत करना, दूसरी टाइम पकड़ में नहीं आएगा, वो भाग जाएगा। सो बैठेंगे, चलो बैठेंगे, मम्मा भी बैठ रही है, स्माइल भी बैठेगा। सो फिजिकल प्रॉम्प्ट देके हम कराएंगे। ग्रेजुअली वी विल फेड द फिजिकल प्रॉम्प्ट लेटर ऑन, ग्रेजुअली। नेक्स्ट इज इमिटेशन एंड कंप्लायंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज लर्निंग इसी से ही आएगी। इमिटेट करना एंड कंप्लायंस। इमिटेट मतलब नकल उतारना, कंप्लायंस मतलब मैंने जो तुम्हें बोला वो मेरी बात मानना, बात सुनना, बात मानना। सो इमिटेशन करने के लिए इंस्ट्रक्शंस जो हम देंगे बहुत
शॉर्ट एंड क्लियर। स्मयन, जाओ उस घर से रुमाल लेके आओ। जब तक वो सुनेगा करेगा, वो तो भूल चुका है। इनिशियल छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, नॉट द बिग वंस, अभी छोटे की बात कर रही हूँ। तो शॉर्ट एंड क्रिस्प, स्मयन दे दो। स्मयन, अगर स्मयन नाम नहीं है तो बोलेंगे वैसलीन दे दो, वैसलीन ले लो। तो सिंपल, शॉर्ट एंड क्रिस्प। जितना शॉर्ट दोगे उतना बच्चे का कंप्लायंस बढ़ेगा ग्रेजुअली। लेकिन उसके साथ साथ आपको पहले सिखाना भी पड़ेगा, गिव टेक पॉइंट, ये भी सिखाना पड़ेगा। क्योंकि दे दो और ले लो सबसे हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं गिव एंड टेक में। सो ये भी आपको ग्रेजुअली सिखाना पड़ेगा। सिखाने के लिए फिजिकल प्रॉम्प्ट से आपको मॉडल कर करके देना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। ग्रेजुअली आप वो फिजिकल प्रॉम्प्ट हट के वर्बल प्रॉम्प्ट में आएगा। तो इनिशियल तो आपको करना पड़ेगा, दे दो, ले लो, फिजिकल प्रॉम्प्ट दे दे के हम कराएंगे। Always when you give an instruction, wait for few seconds. It's very very important. स्मयन पेन दे दो, पेन लेट हो रहा है, जल्दी पेन लाओ। ये स्मयन पेन दे दो, स्मयन पेन दो, मैं बोल रही हूँ पेन दे दो। स्मयन पेन दे दो। वेट, एज अ पेरेंट यू नीड टू वेट। ये बहुत जरूरी है सीखना कि वेट करो थोड़ी देर, 2-4 सेकंड्स के लिए वेट करो। वेट करो तो वो कर रहा है कि नहीं, वेट फॉर इट। नहीं कर रहा फिर फिजिकल प्रॉम्प्ट दे के कराओ या दोबारा रिपीट करके करवाओ। सो इसमें हमें रिपीटेशंस बहुत देनी पड़ती है कंप्लायंस के लिए। ये सब में रेपिटेशंस का काम बहुत है। आपने अगर फॉर एग्जांपल एक महीने में गोल लिया कि मैं बच्चे को गिव सिखाऊंगी, तो वो गिव आपने आज किया और 10 दिन बाद करा तो वो नहीं होगा। डू इट रेगुलरली, रिलीजियसली। अगर आप फर्स्ट डे आप एक रिमोट से करा रहे हो, सेकेंड डे एक ग्लास से करा रहे हो, तो आप 3 चीजों से कराओ, वो रेपिटेशंस में कराओ। जब वो रेपिटेशंस आ जाएगी फिर उसको जनरलाइज करेंगे दूसरी चीजों से। मेक श्योर आज रिमोट है, कल ग्लास है, परसों वो है, वो नहीं भूले समझ पाएगा। इनिशियल डेज में मेक श्योर यू आर रिपीटिंग द सेम वे एज यू हैव डन अर्लियर ऑल्सो, बिकॉज बच्चे को हम सिखा रहे हैं। इमिटेशन में ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज, क्लैप करना, स्टैंड करना, सिट करना, ये सिखाएंगे पहले, फिर साथ साथ वो करेगा। नहीं कर, अगर आपके घर में आपके हस्बैंड है या कोई भी है जो साथ में कर सकता है, तो आपने अपने हस्बैंड को बोला ये 3 चीजें आप 5 मिनट के लिए करो, एक एक करके मैं इसको फिजिकल प्रॉम्प्ट देके सिखाऊंगी। बच्चे को नहीं आता क्लैप, सो टीच। हस्बैंड ने क्लैप किया, बच्चे को आप सिखा रहे हो क्लैप। सो दिस इज इमिटेशन, ग्रॉस मोटर इमिटेशन। क्लैप हो गया, स्टैंड हो गया, सिट हो गया, आप फिजिकल प्रॉम्प्ट देके करा सकते हो बिकॉज बच्चे को समझ नहीं आ रहा है। डू इट व्हेन इट इज अटेन्ड, फिर आप नया कुछ गोल लो। बट ये थोड़ा 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 करके आप इमिटेशन आप घर पे सिखाओ। स्कूल रिलेटेड यही होता है, क्लैप करना होता है, स्टैंड होना होता है, सिट होना होता है, ये बेसिक छोटी छोटी चीजें। फाइन मोटर्स में आप ब्लॉक बिल्डिंग करा सकते हो, क्लॉथ क्लिप्स लगवा सकते हो, पेग्स लगवा सकते हो, मैंने लगाए तुम करो, अब तुम्हारी टर्न तुम करो। सो दीज आर इमिटेशंस जो आप करेंगे आपका बच्चा भी करेगा। इनिशियली जो चीज उसको आती है उससे हम स्टार्ट करेंगे, फिर ही आप नया कुछ इंट्रोड्यूस करोगे। टर्न टेकिंग एंड वेटिंग सबसे लंबा चलने वाला प्रक्रिया है ये, बहुत लंबा। बच्चे भूल जाते हैं बिकॉज दीज ऑल दीज थिंग्स आर एब्स्ट्रैक्ट। ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट है जो हमारा बच्चा नहीं समझ पाता है। वेटिंग क्या होता है उसे पता ही नहीं है, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग ना। सो वेटिंग के लिए, टर्न टेकिंग के लिए, आप जैसे आपके पास कोई ड्रम है, आपने मारा, उसने मारा, तो आप बोलोगे स्मयन मम्मा की टर्न। अब स्मयन की टर्न, स्मयन ने मारा, मम्मा की टर्न। नहीं मुझे नहीं करना, ये हाथ पांव फेंक रहे, कोई बात नहीं साथ में करते हैं, चलो मम्मा विल डू। उसका हाथ पकड़ के करा रहे हो, आप कर रहे हो, 2 बार किया, 3 बार किया, ड्रम से हो गया। अगर बच्चे को कलरिंग पसंद है तो आप भी एक थोड़ा सा बीच में कलरिंग करोगे, वो एक कलरिंग करेगा। लाइक दिस टर्न टेकिंग हम स्लोली स्लोली सिखा पाएंगे। ये रुकते नहीं है, ये नहीं रुकना चाहते हमारे बच्चे। सो हमें उनके जो एक्टिविटीज में है उसमें घुस के जो उन्हें मजा आता है उसमें हमको टर्न टेकिंग सिखाना पड़ेगा। जैसे ढम ढम मारा, मैंने मारा, तुम भी मारो, लेट्स डू दिस, धम धम मम्मा का, धम धम स्माइन का, लाइक दिस टर्न टेक्स, ऐसे करके करेंगे।
नेक्स्ट इज वेटिंग। वेटिंग करने के लिए वही जैसे सिटिंग का है, काउंट टू 5, एक चेयर उसकी चेयर में बिठाएंगे, लेट्स स्टार्ट काउंटिंग। तो जैसे जैसे सिटिंग आएगी ना, वेटिंग का भी हमें वैसे ही करना होगा इनिशियली। उसके बाद जैसे ही बच्चे का 5 काउंट्स हो गया, फिर बोलेंगे यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, अब थोड़ी देर और 5 वेट करें, 1 2 3 4 5, नाउ वेरी गुड वेटिंग, चलो अब हम ये एक्टिविटी करते हैं। उसने सिटिंग कर ली, वेटिंग कर ली, सामने उसका फेवरेट चिप्स रखा है, ये लेंगे, वेट करेंगे, वेटिंग टाइम। अगर बच्चा वेटिंग नहीं समझ पा रहा, यू कैन मेक अ वेटिंग का ऐसा कुछ, वेटिंग का हैंड्स का भी आप लगा सकते हो, जिससे बच्चे को विजुअली ये समझ में आए। एक फ्लैश कार्ड्स बना लो। अगर ग्रुप में आप कर रहे हो तो आप येलो कलर ले लो, ग्रीन कलर ले लो। तो येलो, जब येलो कलर आप फॉर एग्जांपल उसने बॉल थ्रो किया, फॉर एग्जांपल स्माइल ने बॉल थ्रो किया, आप स्माइल की वेटिंग टाइम, स्माइल येलो कार्ड लेके बैठ गए, स्माइल वेट करना पड़ेगा, लेट्स वेट। अब चलो अविक तुम आ जाओ, तुम्हारी टर्न। अविक आके खेल के आया, अविक ने फिर अपना ग्रीन कार्ड ले लिया, सो वी आर वेटिंग। तब तक वेट करेंगे जब तक मेरे पास ये ग्रीन कार्ड है, मुझे वेट करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस। अगर कार्ड से नहीं करा सकते हो तो आप पहले घर पे करो। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये घर पे वेटिंग कॉन्सेप्ट घर पे हमें सिखानी पड़ती है। जैसे जैसे बच्चा वेटिंग में समझने घर पे लगा, नेक्स्ट टारगेट हो जाता है बाहर नहीं समझना चाह रहा, you we all go to therapy centers. This is what I have done, that's what I will tell you. Carry some interesting puzzles or book with you. Make sure you reach 10 minutes early because वहां पे वेटिंग एरिया में वेट करना पड़ेगा। सो मेक श्योर वो वहां पे ये चीजें करे, उसकी फेवरेट चीज जो वो कर रहा है, एंड रास्ते में प्रिपेयर कर करके ले जाओ। ऑटो में आई यूज टू डू, स्माइल वेट करना पड़ेगा, अभी टाइम है, वेट करना पड़ेगा, अभी टाइम है। सो ग्रेजुअली आप जब क्लॉक समझा सकते हो, डिजिटल क्लॉक आ जाएगा, तब जब बड़े हो जाएंगे थोड़े से, तब वेटिंग बिकम्स मच इजी बिकॉज क्लॉक में टाइमर चलता है, इट गिव्स प्रिडिक्टेबिलिटी, तो बच्चे को वेटिंग इजी पड़ जाता है। अभी इनिशियली वेटिंग में हमें चेयर में, जैसे मैंने बोला, काउंटिंग करके हम धीरे धीरे वेटिंग कराएंगे। जब यहाँ आएगी, जब आपका बच्चा घर पे वेटिंग समझेगा, तभी पार्क में लेके वो टर्न टेकिंग भी समझेगा, वेटिंग भी समझेगा कि वेट करेंगे, क्योंकि नहीं तो दूसरे को धक्का मार के स्लाइड कर देगा। सो द वेटिंग कॉन्सेप्ट घर पे देना पड़ेगा, वेट करेंगे, वेटिंग करेंगे, समथिंग लाइक दिस यू हैव टू स्टार्ट एट होम, तभी तो वो स्कूल में भी करेगा। उसके बाद टर्न टेकिंग हो गई, ये प्री लर्निंग स्किल्स हो गई हमारी। अब प्री लर्निंग स्किल्स के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड, यस, प्री एकेडमिक स्किल्स, जो हम सबको प्रेशर में हमेशा रखती है कि बच्चे को भी स्कूल में भेजना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है। वंस दीज थिंग्स आर अचीव, वी विल कम टू द पढ़ाई लिखाई का काम। सो सबसे पहले है मैचिंग, सॉर्टिंग, ग्रुपिंग, या हम कैटेगरी करते हैं, पैटर्न मेकिंग करते हैं, सीक्वेंसिंग एंड लेबलिंग, दीज आर ऑल स्टेप, एक के बाद एक स्टेप्स हैं ये। आप अगर मैचिंग करा के कैटेगरी में चले गए, नहीं होगा। ये सब एक एक स्टेप को फॉलो करना जरूरी है। तो मैचिंग, जैसे बच्चे को ब्लू कलर पता है या बच्चे को ABCD पता है, गिव द चाइल्ड ABCD के फ्लैश कार्ड्स एक और बना लो और बोलो लेट्स मैच A। सो लेट द चाइल्ड मैच मैच मैच। बच्चे को 1 2 3 4 पता है, गिव 1 2 3 4 दे दो, लेट हिम मैच मैच मैच। तो जब आप मैचिंग कर रहे हो, बच्चा ऑटोमेटिकली सॉर्टिंग भी सीख जा रहा है, क्योंकि ABCD भी अलग अलग हो रहे हैं और 1 2 3 भी सॉर्ट होने लग गए। सिमिलरली शेप्स में भी यही होगा, कलर्स में भी यही होगा, वेजिटेबल्स बोलो, फ्रूट्स बोलो, सारे के सारे मैचिंग एंड सॉर्टिंग। जब ये इंडिपेंडेंटली बच्चे ने कर लिया है, फिर हम आएंगे कैटेगरी में, अल्फाबेट्स, नंबर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट। मैचिंग के बाद अगर आप कैटेगरी में चले गए, बच्चा विल बी कंफ्यूज्ड, क्योंकि उसका बीच में सॉर्टिंग ही नहीं हुआ। तो ये बहुत जरूरी है, हम हर चीज में ऐसा बड़ा जंप नहीं मार सकते, ठीक है। तो हम कैसे सिखा सकते हैं, शेप सॉर्टर्स मिलते हैं बच्चों को खेलने के लिए, तो वैसे हम शेप सॉर्टर्स हम सिखा सकते हैं, दे कैन लर्न दैट वे, उससे बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। एंड कैटेगरीज भी वैसे ही करके करना है, ये शेप्स है, ये कलर्स है। व्हेन ही इज कॉन्फिडेंट विद मैचिंग एंड सॉर्टिंग, देन वी विल गिव हिम, दिस इज गिव मी ऑल द वेजिटेबल्स। तो वो मैचिंग मतलब
मैच, हाँ, रिस्पेक्ट टू अल्फाबेट्स में से ए के साथ आपने बोला एप्पल, बी के साथ मैंने आपको बेसिक वाला बताया था, पहले ए टू ए, बी टू बी, सी टू सी मैच कर लिया। अब मैचिंग आई, आपने ए बी सी दिया, अब आपने एप्पल दे दिया, बनाना दे दिया, कैट दे दिया, डॉग दे दिया, अब मैच करो। समझ रहे हो आप? अल्फाबेट टू ऑब्जेक्ट वर्ब मैचिंग आ जाएगी। ये नेक्स्ट लेवल होता है कराने का, क्योंकि एग्जाम्स में, टेस्ट में ऐसे आता है ना, सर्कल द ऑब्जेक्ट विच स्टार्ट्स विद ए। सो वो बच्चे को वो पता होना चाहिए। सो ए से अल्फा एप्पल है, बी से बॉल है, तो ये वाली मैचिंग, ये मैचिंग हो गई। तो उसके लिए फोनिक सिखाना पड़ेगा ना मैम? या एब्सोल्युटली, फोनिक्स पहले तो ABCD पे आ जाए, मैं एकदम बेसिक आपको समझा रही हूँ, फोनिक्स भी आना जरूरी है, बिकॉज फिर आपका CVC वर्ड्स आ जाएगा, इग वर्ड्स, एट वर्ड्स, उसमें फोनिक चाहिए। अभी एकदम बेसिक, बिकॉज इट्स वी आर टॉकिंग अबाउट स्कूल रेडीनेस, सो But इसलिए even if we ABCD। have to do matching, ma'am, Ma'am, with A and apple, then still we have to teach him phonics, right? पिक्चर भी तो समझता है बच्चा, एप्पल Okay. एंड एप्पल भी तो समझेगा ना, ए एंड एप्पल भी तो समझेगा, वो तो आप बोलोगे ही, समझाओगे। ए, गाने रहते हैं, ए इज फॉर एप्पल, ए, Hmm. एप्पल, आजकल हम सिखाते ही तो हाँ यूट्यूब से ही है। बी हाँ हाँ। इज फॉर बॉल, ब, बॉल, फोनिक्स आ रहा है, राइट? Mhm. तो जितना आप Okay. ऑडिटरी मोड में सिखाओगे, यूट्यूब का बहुत फायदा है, यूज करो, ऑडिटरी मोड Hmm. में बहुत यूज करो। मेरे बच्चे ने सारा फोनिक्स यूट्यूब से ही सीखा है, उसको हिंदी इसलिए दिक्कत नहीं हुई। जब आपके फोनिक्स क्लियर होंगे ना, आल क ख घ में दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि वो उसी से उठ रहा है, वो देखना, Hmm. ख, ग, क, तो इसलिए फोनिक्स क्लियर होने जरूरी है। बट क्योंकि हम स्कूल रेडीनेस की बात कर रहे हैं, इट्स अ बेसिक जो मैं बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने आपको मैचिंग ऐसे ABCD 1 2 3 वेजिटेबल्स एंड एप्पल्स से समझाया। सॉर्टिंग करेंगे, आपने दे दिया ब्लू कलर, व्हाइट कलर, ब्लू कलर एंड पिंक, वाइट, येलो कलर। अब हम, आपने बहुत सारे दे दिए ब्लू एंड येलो, अब आप बोलोगे लेट सॉर्ट, सारे ब्लू कलर्स निकालो। सो ही विल टेक आउट ऑल द ब्लू कलर्स, माइंडेड, उसको ब्लू कलर 110% अच्छे से आता है। मेक श्योर दैट, ये नहीं कि उसको आता नहीं हमने दे दिया, वो कॉन्फिडेंस लूज हो गया, बच्चा भाग जाएगा। ऑलवेज जो भी आप सिखाओ, कॉन्फिडेंस शेक मत करने दें, आगे बढ़ेगा नहीं, आपसे भागेगा। हमारे बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बहुत बच्चे बोल नहीं पाते, समझ नहीं, मतलब बता नहीं पाते, बट किसी को भी फेलियर पसंद नहीं है, नोबडी लाइक्स फेलियर। सो काम ऐसा दो, इसलिए मैंने पहले ही आपको बोला, गोल ऐसे एज अ मदर आप चूज करोगे जो आपको पता है वो कर लेगा, अचीवेबल गोल्स, ब्रेक इट डाउन। इतना सारा प्रेशर मत लो स्कूल का, थोड़ा थोड़ा होगा, इट्स अ प्रोसेस, धीरे धीरे होगा, इतने जल्दी नहीं होगा, टाइम लगेगा, हर बच्चे की लर्निंग भी अलग होती है। सो लेट्स गो इट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस का फंडा। करो, बच्चे ने एक बार समझ लिया, आपके साथ कंप्लायंस बन गई, अटेंशन आ गया, सिटिंग आ गई, फिर आपको टेंशन नहीं है। इसलिए पहले मैंने कहा सबसे डिफिकल्ट काम होता है वो प्री, जो बच्चा बैठेगा, सिटिंग करेगा, वेटिंग करेगा। मैं क्वेश्चंस बाद में लूं मोनिका, थोड़ी देर में ले लूं, क्योंकि फिर ना टाइम yes, मेरे ma'am. पास कम है, अभी तक मैं सेकंड में भी नहीं पहुंची, चाइत्रा मुझे डांट लगाएगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ma'am. दिस टॉपिक आप 1 घंटे में नहीं कर सकते, इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। एंड आप समझ रहे Yes, हो ना, ma'am. एक्सपीरियंस के थ्रू मैं चाह रही हूँ, मैं आप लोगों को जितना हेल्प कर सकूं, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। सो आई विल कम टू योर टॉपिक मोनिका, डन। सो इसके Okay, ma'am. बाद जब ये वाले अचीव हो गए, अब पैटर्न बनाएंगे हम, कैसे बनाएंगे? येलो ले लिया, ब्लू ले लिया, पैटर्न्स बनाओ, येलो लिया, ब्लू लिया, लेट्स मेक द पैटर्न। बच्चा पैटर्न्स बना रहा है, या आप फिलिप्स दोगे, वो भी एक पैटर्न में तो आता है, फिल इन द ब्लैंक्स इज ऑल्सो अ सेट ऑफ पैटर्न, पैटर्न ही तो है, A to Z का जो फिलअप होगा वो पैटर्न मेकिंग ही तो हुआ। जब तक आपको ये अचीव नहीं होगा वो पैटर्न नहीं आएगा। सिमिलरली पैटर्न्स इन, बनाने में पैटर्न्स जो होते हैं, जो एकेडमिक्स में भी आते हैं, वो पैटर्न मेकिंग भी तभी अचीव होगा जब आपके ऊपर के वो 3 चीजें अचीव हो। फिर डेली एक्टिविटीज में जैसे सीक्वेंसिंग आ गया, अब डेली एक्टिविटीज में हम सीक्वेंसिंग बच्चे को सिखा सकते हैं। पहले सीक्वेंसिंग अपने उसके चीज से सिखाना, मैं सुबह उठा, मैंने ब्रश किया, नहाया, स्कूल गया। इफ द लेवल इज
अभी सिर्फ 4 कर सकते हैं तो हम 4 करेंगे, 4 नहीं कर पा रहा 3 करेंगे। सीक्वेंसिंग, लेट हिम अंडरस्टैंड हिमसेल्फ फर्स्ट। मैं एक पिक्चर की वो कराऊंगी, नहीं समझ आएगा, आप इरिटेट हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। हमें उसको, उसकी कॉग्निशन बढ़ानी है, उसको अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन बढ़ानी है। अपने आप को तो पहले समझे बच्चा, है ना, फिर उसको हम लेवल बढ़ा देंगे। जब अगर उसको 3 सीक्वेंस आ गई, 5-6 सीक्वेंस दे दो। मैं स्कूल गया, स्कूल से वापस आया, मैंने चावल खाया, कैसे सिखाओगे? फोटो क्लिक कर लो, उसकी फोटो, एक्टिविटी की फोटो क्लिक कर लो, उसमें आप एक्शन वर्ड्स भी सिखा दोगे, सीक्वेंसिंग भी आ जाएगी। तो डू सीक्वेंसिंग, दैट रियली हेल्प्स। फिर सीक्वेंसिंग, बॉटल ओपन किया, पानी डाला, पी लिया, 3 स्टेप्स। सिंपल सिंपल, एज पर द बच्चे के हिसाब से, बच्चा जिसमें कंफर्टेबल है, डू दैट। तो सीक्वेंसिंग लेबलिंग होगी। नेक्स्ट स्लाइड चैत्रा। आई होप आई कैन फिनिश ऑन टाइम। नेक्स्ट स्लाइड। यस, नाउ कम्स प्री रीडिंग स्किल, पढ़ना लिखना। तो उसमें मेन है अल्फाबेट आइडेंटिफिकेशन, पिक्चर रीडिंग। अल्फाबेट्स हम कैसे आइडेंटिफाई कराएंगे? जैसे मैंने कहा, यूट्यूब चला दो, यूट्यूब में बहुत अच्छे से बच्चे को मजा आता है सुनने में, बिकॉज इट्स राइमिंग। देर आर किड्स जिनको मीनिंग कुछ नहीं पता, ऐसे में नहीं बोलते, लेकिन ये सारा गाना गाते हैं। तो टेक एडवांटेज ऑफ इट, फायदा उठाना है इस चीज का। ए इज फॉर एप्पल, एप्पल, एप्पल इज द फोनिक्स। फायदा उठाओ उस चीजों का। यूट्यूब के फायदे तो हमें उठाने ही पड़ेंगे जितना हम उठा सकते हैं। सिंग द सॉन्ग, जब बच्चे को रट गया, हम गाना गाएंगे, इसमें आपका देखो अटेंशन आ जाएगा, आई कांटेक्ट आ जाएगा, बिकॉज ये उसका फेवरेट सॉन्ग है। कितनी चीजें एक साथ हम कर रहे हैं, एक साथ। सॉफ्ट स्पंजी वाली ना किताबें मिलती हैं, बहुत अच्छी, इनिशियल बच्चों की एबीसीडी वाली, वो किताबें आप ले सकते हो। उसमें क्या होगा, या मैं इनिशियल वाली भी बता रही हूँ, फिर मैं दूसरे लेवल पे आ रही हूँ। तो उसमें क्या होगा, सिर्फ ए होगा, 2 पिक्चर्स होंगी, एक एप्पल होगा, एप्पल हमारा हमेशा ए से एप्पल ही होता है, एंड होगा, 2 पिक्चर या 3 पिक्चर। हाँ हाँ मोनिका, यू कीप एडिंग क्वेश्चंस, नो वरीज, आई विल आंसर यू, नो प्रॉब्लम। सो हम 2 क्वेश्चंस, सॉरी 2 उसमें पिक्चर्स होंगे। अगर आपके पास नहीं मिल पा रही, आप खुद से बना लो। आप लैमिनेटेड पेजेस ले लो, लैमिनेटेड में आप वैसे बना लो। मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रही हूँ सॉफ्ट बुक, बिकॉज जितना कॉन्क्रीट है, जितना सेंसोरियल है, आवर किड्स एंजॉय, दे कैन फील इट। जितना फीलिंग होगा, आप उनको मजा आता है। तो कोशिश हम वो करेंगे। फिर अल्फाबेट्स के पजल्स हम बना सकते हैं, 4 पजल्स, 3 पजल्स, उसमें आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी आ रहा है, पजल्स भी आ रहा है, बच्चा पढ़ भी रहा है, और आप पूरे दिन वो ABCD नहीं सिखा रहे हो, समथिंग इंटरेस्टिंग। आई हैव डन दिस विथ माई चाइल्ड, ही यूज्ड टू एंजॉय दीज थिंग्स अ लॉट, सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू। एंड एक और चीज है, बच्चे उल्टा किताब पढ़ते हैं, बहुत बच्चों को नहीं पता, वो सिखाना भी बहुत जरूरी है। ट्राई टू रीड बुक्स टुगेदर, जब हम साथ में बैठेंगे, बच्चे की कंप्लायंस बढ़ेगी, जॉइंट अटेंशन बढ़ेगा, बच्चा इंजॉय करेगा माँ के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्फेसाइज ऑन लेफ्ट टू राइट, बच्चे इनिशियली नहीं समझ पाते कहाँ से पढ़ना है, तो लेफ्ट टू राइट। एंड एक और एक एक्टिविटी दे सकते हो बच्चे को आप करने के लिए, जो का फाइन मोटर ड्यूरिंग द रीडिंग इज टर्न द पेज। Also, it's a concept which is going to build in the later stages. पिक्चर रीडिंग, जैसे मैं इसमें लिखा है, पिक्चर रीडिंग जो है, ये थोड़े से बड़े बच्चे जो ABCD से आगे, थोड़ा आगे, थोड़े सेटल्ड हो रहे हैं। तो पिक्चर रीडिंग में पिक्चर ऐसी लेंगे किताब की जिसमें बड़ी प्रॉपर क्लियर पिक्चर होगी, और रिटर्न जो होगा वो कम होगा। द बॉय इज स्लीपिंग इन द ऑन द बेड, एक लाइन छोटा, जितना कम उतना अटेंशन, क्योंकि अटेंशन हम देते नहीं है। ग्रेजुअली वो बढ़ेगी, आप स्कूल की किताब में भी देखोगे, स्कूल की किताब में पिक्चर्स ज्यादा होती हैं, रिटन कम होता है। ग्रेजुअली पिक्चर कम हो जाएगा, रिटन ज्यादा होता है। सो इनिशियली कोशिश करेंगे पिक्चर पे एम्फसाइज करें, रिटन पे कम, जिससे कि डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, हम जो सिखाना चाह रहे हैं वो सीखें ना। प्री रीडिंग के बाद नेक्स्ट चाहता, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्री राइटिंग स्किल, मेरा बच्चा लिख नहीं रहा, मैडम लिखता नहीं है, पेंसिल नहीं पकड़ रहा। बाबा पहले स्क्रिबलिंग तो करने दो, ट्रेसिंग करने दो, कॉपिंग करने दो, ये सब स्टेप्स है। फाइन मोटर स्किल्स बहुत जरूरी है,
फाइन मोटर एक्टिविटीज घर पे बहुत जरूरी है। अगर आप वेजिटेबल सिखा रहे हो बच्चे को, आलू उठवाओ, सॉर्टिंग। घर के किचन सबसे बढ़िया जगह है आपका, जहाँ पे आप बच्चे को कितना कुछ सिखा सकते हो, कितना कुछ। तो उसमें आप सॉर्टिंग भी कराओगे, फाइन मोटर भी हो रही है। आलू को उठाने के लिए जो हैंड की कोऑर्डिनेशन चाहिए, हैंड एंड फिंगर स्ट्रेंथनिंग चाहिए, वो बच्चा करेगा। आलू निकालो, प्याज निकालो, उसमें आप सॉर्टिंग भी सिखा रहे हो और बच्चे को आप कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से भी सिखा रहे हो। सो फाइन मोटर एक्टिविटीज जो आपके ओटी ने बोला है एज पर योर चाइल्ड नीड्स, उस पे आप काम कर सकते हैं घर पे। जैसे प्ले डो दे दिया, थेरापुटी दे दिया, क्लिप के क्लॉथ से क्लॉथ पैक्स आप बना वो कर सकते हो, स्क्रू एंड अनस्क्रू, इट वर्क्स वंडरफुल। मेरे पास वो नहीं थे तो मैं अपने घर से वो खरीद के लाई थी, वो हार्डवेयर की दुकान से, मोटे मोटे। तो आजकल तो प्लास्टिक के मिलते हैं। स्क्रू अनस्क्रू में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, तो वो आप दे सकते हो। बच्चे को फिंगर से कलरिंग करने दो, यू लेट देम यूज देयर फिंगर्स टू कलर। बहुत अच्छा है, इससे आई हैंड कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, बहुत जरूरी है। और इससे विजुअल परसेप्शन में उनको अच्छा लगता है, इट गिव्स देम कामनेस। तो फिंगर पेंटिंग कराओ, लेडी फिंगर से पेंटिंग होती है, आलू से पेंटिंग होती है। डू दोस एक्टिविटीज, मजा आता है उन लोगों को। पेपर फाड़ने का दो, पेपर भी इतना ही देना, नहीं तो उनको इतना बाद में मजा आता है कि वो बहुत ज्यादा गंदा करते हैं। तो अगर आप दे रहे हो तो एक पेज देके एक कटोरा दोगे, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। घर गंदा करना मत सिखाना, बच्चे करने दो लेकिन साफ भी उसी को ही करना है, दैट्स अ फिनिशिंग एक्टिविटी टास्क। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नहीं तो करके चल दिया, साथ में साफ करेंगे। सी, उसमें भी टर्न टेकिंग आएगी, एक साथ करेंगे, वेटिंग होगी, कंप्लायंस बढ़ेगा, सब वही सब कुछ एक साथ आता जाता है। दीज आर ऑल साथ साथ चलेगा। फिर जो टिश्यू रोल्स खत्म हो जाते हैं, उसके अंदर आपके वो सॉफ्ट वाले रबर बैंड्स लगाने दो जो नरम वाले होते हैं, उसमें देखो हैंड की स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी। वो बहुत अच्छी एक्टिविटी है, स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी। प्लस बायलैटरल, दोनों हाथ से, एक हाथ से पकड़ना है, एक हाथ से डालना है। अभी भी दिक्कत होती है मेरे बेटे को, क्योंकि वो भूल जाता है, पेपर लिख रहा है, पेपर उड़ रहा है, जो दूसरे हाथ से पेपर में हाथ देना है, लिखना है, वो बोलना पड़ता है। सो बायलैटरल, एक हाथ से पकड़ेंगे, एक हाथ से करेंगे। मिड लाइन क्रॉसिंग वाली एक्टिविटीज, यहां से लेके यहां तक ओटी वाला कराता है, घर पे कराओ जान के। स्मयन, ये वाला आलू मुझे दे दो, जान के तुम उधर खड़ी रहो, वो मिड लाइन क्रॉस करेगा। डू दीज एक्टिविटीज एट होम। तो स्क्रिबलिंग हो गई, जैसे ट्रेसिंग बच्चा करेगा, कॉपी करेगा ग्रेजुअली। फिर राइटिंग फ्रॉम मेमोरी, अपने मेमोरी से लिखना शुरू करेगा। दीज आर स्टेप्स। बट फाइन मोटर्स की मैंने इसलिए बोली क्योंकि पहले बच्चा पकड़ने में ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है, डेप्थ में नहीं आ रहा है। सो एक्टिविटीज जो ओटी वाले करा रहे हैं, इसके अलावा आप ये वाले काम कराओ। डोंट फोर्स द चाइल्ड, करो 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 करो, जितना वो कर पा रहा है लेट हिम डू, लेट हिम एंजॉय दैट, बहुत जरूरी है। आप उसको सैंड ट्रे दे सकते हो, उसमें उसको लिखने की प्रैक्टिस कराओ, जो वो ज्यादा अच्छा है। सूजी दे दो, चलो सैंड नहीं, सूजी दे दो, सूजी प्लेट में डाल दो, इमिटेट करो। आप एक लो, एक वो लेगा, आपने एस लिखा, उसने एस लिखा, फ्लैश कार्ड सामने रख दो, लेट हिम ट्राई दिस। सूजी नहीं हो रहा, चलो आटा ले लो, मैदा ले लो, यूज इट, करो इनको यूज। कॉर्नफ्लावर में पानी डाल लो, कॉर्नफ्लावर 2 चम्मच लिया, पानी थोड़ा डाल दिया, कॉर्नफ्लावर नीचे पूरे सेटल हो जाता है, उसमें कॉइन्स डाल दो, अब निकालो, उसमें बहुत फिंगर ग्रिपिंग चाहिए होती है, एंड दे एंजॉय। उसमें फिर उसके बाद आप सॉर्टिंग करा लो, अगर बच्चे को 1 to 5 पता है, 1 की नोट दे दो, 5 की नोट, तो एक ही साथ कितना सारा काम हो गया, सॉर्टिंग भी हो गया, मैचिंग भी हो गया, फाइन मोटर भी हो गया, बच्चा सिटिंग भी हो गया, सिटिंग टॉलरेंस बढ़ गई, एंड आप अप्रिशिएट करो, वाह मेरे शेर तूने क्या महान काम किया। बस बच्चा को यही तो चाहिए, माँ का वो एक्सप्रेशन, वो इसी का वेट करता है कि मैंने काम किया है। रीइंफोर्सर्स अभी चिप्स वगैरह जो दे रहे हो दो, लास्ट रीइंफोर्सर हमारे बच्चे के लाइफ में उसकी माँ होनी चाहिए, सिंपल, और कुछ नहीं। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड, मैं थोड़ा पानी पी लूं। वेरी इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है। सेल्फ केयर, बच्चा मम्मा तो सुसु पॉटी करा रही है, वहां जाके तो मुश्किल हो जाएगी जी, तो घर पे सबसे पहले
यूज द बाथरूम इंडिपेंडेंटली, वॉशेज एंड ड्राइज हैंड, मॉडल एंड प्रैक्टिस। बच्चा अगर डायपर में है, डायपर में बैठ के पॉटिंग, मेरा बेटा स्क्वाट करके डायपर में पॉटी करेगा, स्क्वाट नॉर्मल बैठ के। सो आई वाज फेड अप, सो व्हाट आई डिड, तो मैंने उसको पहले बोला जा पहले वॉशरूम में जा, वॉशरूम में जा, वॉशरूम में पिक्चर लगा दी, लिख दिया, नॉट वर्किंग। द मोमेंट ही यूज्ड टू सिट, उठा के वहां पटक दिया, वहां जाके पॉटी कर, तो डायपर में कर लेकिन वॉशरूम में बैठ के कर। वो बहुत जरूरी है, पहले ही शुड नो ही और शी कि कहाँ जाके करते हैं। सो गो इन द वॉशरूम एंड डू। उसके बाद अगर डायपर हटानी है तो ग्रेजुअली हम डायपर हटवाएंगे। ऑल्सो विच वर्क गुड फॉर मी विथ स्माइन वॉज, उसको वॉशरूम सुसु समझ नहीं आती थी, कब करना है नहीं करना है। मेरे पास एक टेबल था, तो उसमें मैं ना टाइम लिख के रखती थी 9 to 9:30, और मैं उसमें टिक करती रहती थी। आई यूज टू टिक लाइक दैट। तो मेरा वो चार्ट था, मैं हमेशा घड़ी पढ़ के मैंने रहती थी नहीं, आई यूज टू चेक, एंड मोबाइल में टाइमर लगा के रखती थी कि जैसे ही उसने सुसु, अगर मैं उसको लेके जाऊंगी, सुसु कराऊंगी, नहीं किया क्रॉस, तो इसका मतलब 9:30 बजे उसको जाना पड़ेगा फिर से। सो मेक अ चार्ट। थोड़े मेहनत लगती है, ये वाली चीजें ना इनिशियल थोड़ा मेहनत खाता है, लेकिन एक बार सीख गया ना फिर मेहनत खत्म और परेशानी नहीं। तो इनिशियली मेहनत कर लो आप जितना कर सकते हो। और विजुअल स्केड्यूल वी कैन हैव फॉर अ पॉटी ट्रेनिंग। बच्चे को समझ नहीं आ रहा क्या करना है, सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज चाइत्रा। एंड प्रैक्टिस एंड प्रेज अ लॉट। अगर वो वहां गया भी, प्रेज इट। अगर उसने हाथ धोने के लिए हाथ बाहर ऐसे भी किया, आपका इसमें भी फिजिकल प्रॉम्प्ट हटा, प्रेज प्रेज प्रेज, रीइंफोर्समेंट शुड बी देयर। मेरे बेटे ने पहली बार जब बैठ के पॉटी करी थी, मैंने पार्टी करी थी, मैंने उसको बाहर खिलाया था, भले मुझे 4 दिन बाहर खिलाना पड़ा। उसने 6वें 7वें दिन उसको समझ आ गया मुझे उधर ही तो जाना है। फिर खाने का इंटेंसिटी कम कर दिया मैंने उसकी तारीफ करी, सबको फोन पे कॉल योर घर वाला एंड कॉल एवरीबडी, पापा मम्मा उसने आज ये किया, मेक इट अ जश्न का माहौल, बिकॉज दे आर ऑल्सो वेटिंग, बच्चा पॉटी ट्रेन नहीं है। सो हर चीज में उसका जश्न का माहौल इनिशियली हमें चाहिए होता है, क्योंकि उसको वो फीलिंग आनी चाहिए। सो दिस इज अ स्केड्यूल विच यू कैन ट्राई एट होम। आप स्केड्यूल लगा सकते हो क्या करना है, इसमें आपको पूरी मॉडलिंग करनी पड़ेगी, खुद ने ही मॉडलिंग करना है, बच्चे को मॉडल कराना है, फिजिकल प्रॉम्प्ट दे दे के कराना है, हैंड वॉश में मॉडल। ये जरूर याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, सब कुछ हो गया, सिखा रहे हो, बच्चा स्कूल जा रहा है, अब क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, टीचरों से पंगे मत लेना, कोशिश करना जितना हो सके, ठीक है। बी ऑलवेज रेडी टू हेल्प देम। उनको मदद चाहिए, बिकॉज उनको नहीं पता, सीरियसली मुझे आपको नहीं पता होता स्पेशल नीड क्या है जब तक हमारे बच्चे हमारे लाइफ में नहीं आते, ये सच्चाई है। तो उन्हें भी नहीं पता, दे आर हैंडलिंग 10, 15, 20 किड्स एट वन गो, तो उन्हें नहीं पता। तो अगर आपका बच्चा शैडो के साथ जा रहा है तो शैडो को अपडेट आपको लेनी पड़ेगी, ट्राई टू गेट अ पिक्चर फ्रॉम द शैडो की, अगर पिक्चर वो दे सके। क्लास टीचर से अपडेट लो बहुत प्यार से, विनम्र, बिकॉज तुम्हें चाहिए, उसे कुछ नहीं पड़ा है, तुम्हें चाहिए। मैम कुछ भी मदद चाहिए आप मुझे बोलो, आई एम देयर टू हेल्प यू। चाइत्रा डज इट, चाइत्रा बहुत अच्छे से अपने टीचर, मैंने, मुझे पता, तुमने बताया था मुझे वेदू के बारे में, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बी ऑलवेज रेडी, सुनो, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, एडवोकेसी भी आनी चाहिए, कहाँ मेरा बच्चा नहीं करेगा ये पेरेंट टीचर को पता होना चाहिए। आई हैव फेस्ड इट, मुझे बोला जाता था आपका बच्चा ये करता था, बट मेरे बेटे का ये था कि वो बोल देता था प्लीज शेयर पॉइंट्स इन बोल्ड लेटर। अच्छा नहीं दिख रहा क्लियरली, ओके। चाइत्रा कैन यू जूम इट, थोड़ा जूम कर ले, साइड में जूम करने का वो रहेगा, अगर इफ यू कैन, तो आप कोशिश, थोड़ा सा साइड में एक जूम का बटन रहता है, प्लस वाला साइन, प्लस एंड माइनस, नहीं है, ओके। मैं बोल देती हूँ आपको, तो गेट रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम द शैडो और अ क्लास टीचर, गाइड द टीचर टू मेक द क्लास एनवायरमेंट मोर विजुअल फ्रेंडली। कहाँ बैग रखना है वहां पे एक बैग की पिक्चर लगा दो, बॉटल कहाँ रखना है एक बॉटल की पिक्चर, टीचर नहीं कर रही आप लैमिनेट करके भेज दो, मैम प्लीज आप कर दोगे, आप लगा दो, मेरा बेटे को मैं यही चीज सिखा दूंगी, आप कर दोगे मैम, घर पे सिखाओ।
बॉटल की पिक्चर रखी है, कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, टीच हिम एट होम सो दैट ही वो सेम पिक्चर वो वहां देखेगा। अगर टीचर नहीं मान रही है तो बोल दो मैम आप उस जगह की फोटो भेज दो, मैं घर पे सिखा दूँ कहाँ पे बॉटल रखना होता है। क्योंकि प्राइमरी विंग में बॉटल एंड बैग थोड़े अलग अलग रखते हैं और टीचर्स यू सर्कल शेप में बैठते हैं बहुत जगह, तो मैंने ये बोला। If possible, send a visual schedule with your child and inform the same to teacher. में ही बैठ रहा है, इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है, मैम नहीं समझ आ रहा है, सेंड अ विजुअल स्केड्यूल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप बच्चे को विजुअल स्केड्यूलिंग सिखाओ, बहुत ज्यादा जरूरी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स प्रिडिक्टेबिलिटी, द मोर प्रिडिक्टेबल द मोर इट इज, मतलब उनकी बिहेवियर्स कम रहती है। तो सेंड अ विजुअल स्केड्यूल, लैमिनेटेड विजुअल स्केड्यूल उसके बैग में लगा रख दो या उसके डेस्क के वहां पे चिपका देगी टीचर और उसको वो फॉलो करेगा, टिक मारता जाएगा, वैसे ही बैठेगा, वो सुनेगा। आस्क द टीचर टू गिव मूवमेंट ब्रेक्स। स्मयन जाओ, स्मयन बॉटल जाके रख के आओ, जाओ स्मयन कॉपी यहाँ से उठा के वहां रख दो, तो बेटा नहीं कर रहे हो तो टीचर को बोलो मैम थोड़ा सा उसको फिजिकल प्रॉम्प्ट दे के करा दो, या मैम उसको एक राउंड घूम के आने दो, इतना कमांडिंग नहीं सुन रहा है तो चलो स्मयन आई एम काउंटिंग टू 4, एक राउंड घूम के आ जाएंगे, 1 2 3 4। रिक्वेस्ट द टीचर टू डू दीज थिंग्स, रिक्वेस्ट करो आप, मैम मैं घर पे उसको कराती हूँ, वो करेगा मैम, वो करेगा, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, करेगा। Praise the child for small success and tell the same to the teacher to do it. Very important, क्योंकि 15-20 बच्चों में टीचर हमारे बच्चे को इग्नोर कर जाती है, क्योंकि हमारा बच्चा तो नहीं ध्यान दे रहा एज पर द टीचर। लेकिन अगर उसने छोटा भी, उसने आज पेन उठाया है, एक कलर मारा है, प्रेस, मैम से फीडबैक लो, मैम से रिक्वेस्ट करो, शी विल गिव अ फीडबैक क्या किया है। नहीं फीडबैक दे रही है, अगर आपको लग रहा है आपके बच्चे ने किया, प्रेज बेटा तूने ये किया, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। टेल द सेम टू द टीचर, मैम प्लीज उसी टाइम पे थोड़ा प्रेज कर देंगे, जब तक मेरे पास आएगा वो तो भूल चुका होगा। इट्स ए रिक्वेस्ट मैम, रिक्वेस्ट करो आप, क्योंकि देखो ये इनिशियल फाउंडेशन अगर बन गया तो लेटर स्टेज में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये फाउंडेशन हमें करना ही करना पड़ेगा। emphasize to make your child sit with a peer who is empathetic। थोड़ा बच्चा, कोई भी बच्चा बहुत प्यारे, कुछ कुछ बच्चे होते हैं छोटे वाले में 7th 8th में बहुत बदतमीज होते हैं, छोटे वाले में बहुत अच्छे होते हैं, विच आई हैव एक्सपीरियंस। तो बच्चे को ऐसे किसी के साथ बिठाएं, टीचर को रिक्वेस्ट करें मैम जो बच्चा थोड़ा मेरे बच्चे को बोले, वो इंस्ट्रक्शन दे, वो सुनेगा तो वो सुन कर लेगा, या उसको देख देख के इमिटेट कर ले कैसे क्या करना है, वो बोलेगा ऐसे नहीं, ठीक से कर, ये नहीं वो कर, मैम वो नहीं कर पा रहा है, मैम थोड़ा हेल्प चाहिए। ऐसा कोई बच्चा है, क्लास में एक बच्चा होता है, कोई ना कोई मिल जाता है, या थोड़ा स्लो मो बच्चा है, उसके साथ ही बिठा दो। मेरा बच्चा किसी के साथ तो बैठा है, उसका हालत सोचो, कोई उसको नहीं बात करता, उससे कोई नहीं सुन रहा, एक स्लोमो के साथ ही बिठा दो, वो कितना खुश होगा। एंड टेल द टीचर ऑलवेज अबाउट योर चाइल्ड स्ट्रेंथ। टीचर को नहीं पता होगा तुम्हारे बच्चे में क्या खूबी है, प्रेज योर चाइल्ड, मेक स्मॉल वीडियोज एंड पुट इट इन योर स्टेटस, टीचर भी देखेगी, आई हैव सीन दैट इट वर्क्स। मेरे बच्चे को कुकिंग आता है, टीचर को पता चला वीडियो के थ्रू। सो प्लीज डू दैट, नौटंकी करो, जरूरी है, दिखाना पड़ता है, कोई नहीं देखेगा। ओके, मैंने बहुत ज्ञान दे दिया और इसके बाद समाचार समाप्त होते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को समझ आया, मैंने जो इनपुट्स दिया कुछ हेल्प आप लोगों को मिला, एंड कुछ ना कुछ आज लर्न कर पाए होंगे। आई जस्ट ट्राइड दैट वे ओनली कि जितना चीजों को मैं सिंपल कर पाऊँ आप लोगों के लिए। It was Very important definitely, point. we can listen to it for a long time more. So man, I'll just start with whatever questions have been given. Another 5 minutes, we'll just take it. So पहला question था, what is the difference between matching and sorting ये with मैंने बोल respect दिया, to alphabets? हाँ, ये मैंने okay, बोल दिया था। ठीक है. So when should we add why questions in child IEP plan and ask for आईपी, reason? डियर, आईपी के लिए अगर वाई है तो WH क्वेश्चंस की आप बात कर रहे हो, उसके लिए पहले व्हाट आना चाहिए, हु आना चाहिए, व्हेन, वेयर, फिर आएगा वाई। ओके, सो पहले बच्चे ने बोल दिया व्हाट इज दिस, दिस इज अ पेन,
Where do you get it from? From a stationery shop. When did you get it? On Tuesday. Why do you use it? Because it's a very high abstract level. तो पहले के WH, what, who, when, where आने के बाद why आएगा और फिर how आएगा. ओके, हाउ डू वी यूज इट. ठीक है, तो आप देख लो, अगर आपका बच्चा ये सारे पहले के सीढ़ियां ले चुका है तो फिर आप वाई करा लो, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट. वन मोर थिंग ना, वाई में व्हाट वी कैन ऐड इज द, उसको थोड़ा सा एक्शन रिएक्शन का भी एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या होने से क्या होता है. एब्सोल्युटली. हम खाना क्यों खाते हैं, भूख लगती है तब खाते, तो वहां से भी यू कैन यस, स्टार्ट विद डेफिनेटली द देयर बेसिक आल्सो वंस यू दैट कैन वेरी. ट्राई. हाँ, बेसिक वाई. Okay, next is should we break, ma'am, then when should we challenge the child to break pattern and fixations? देखो, पहले तो पैटर्न किस चीज के ऊपर है, ये मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ. स्कूल जाने के लिए यूजुअली मैं एक ही रूट लेती थी. एक दिन ट्रैफिक जैम हो गया, रूट चेंज कर दिया, तब समझ में आया जनाब तो बैठ बैठ के पैटर्न बना चुके हैं. सो पैटर्न मैंने ब्रेक किया, थोड़ा परेशान हुआ, इरिटेट हुआ. माई सन इज नॉट दैट एक्सप्रेसिव, सो उसका गुस्सा दूसरों चीजों में घर पे आके लगा. ही डजेंट हैव अ मेल्टडाउन एज सच, बट वो इरिटेट हो रहा था बिकॉज उसका पैटर्न ब्रेक मैंने करना पड़ा मुझे. सो पैटर्न ब्रेक क्या, पहले देखो जब लर्निंग हो रही है ना उस टाइम पे तो पैटर्न ब्रेक मत करो, क्योंकि वो सीख रहा है कॉन्सेप्ट. जब आपको पता है वो कॉन्सेप्ट सीख चुका है, तब धीरे धीरे पैटर्न ब्रेक करो. घर में अगर कोई चेयर रखी हुई है जो एक ही फिक्स जगह पे है, उसकी जगह चेंज कर दो. घर की चीजों को थोड़ा आगे पीछे, हम डेकोरेट तो करते हैं घर में, कुछ ना कुछ इधर उधर तो बदलाव होता है, वो धीरे धीरे बदलाव करो. आप उसकी पेंसिल बॉक्स चेंज कर दो कि ये गंदा हो गया. मेक दिस स्मॉल स्मॉल चेंजेस. जब आप, अगर बच्चा राइटिंग कर लेता है, मैचिंग कर लेता है या कुछ भी करता है, तो क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज कर दो. क्वेश्चन का नहीं, जैसे A B C D है तो नीचे B C D E कर दो. चेंज, छोटे छोटे पैटर्न्स हम करेंगे पहले चेंज. फिर घर की, जैसे मैंने बोला, घर की चीजें चेंज करो. कहीं रेस्टोरेंट पे अगर आप रेगुलर जाते हो, वो रेस्टोरेंट चेंज कर दो. चेंज ऐसे लेके आएंगे. Okay. मोनिका ने एक और लिखा था दैट बच्चे को लैंग्वेज यूज करने के लिए कैसे मोटिवेट करना है. जब तक वो बोलेगा नहीं, काम नहीं करने का. सिंपल लॉजिक. फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है आपके बच्चा थ्री थ्री वर्ड्स बोल रहा है. पानी दे दो, वो बोल सकता है, आराम से बोल सकता है, लेकिन वो वेट करता है, वो बोल नहीं रहा है. सो पानी अगर उसे चाहिए तो बोतल थोड़ा दूर कर दो या ऊपर करो जहां पे वो पहुंच नहीं पा रहा, फॉर एग्जाम्पल. मैम तो ये वो ले आएगा. मम्मा, अगर मम्मा बोल रहा है, मम्मा मम्मा, क्या हुआ, बोलो बोलो. अगर वो बोल सकता है मम्मा पानी दे दो, तो आपको इशारा करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ गिविंग अ कंप्लीट वर्बल प्रॉम्प्ट. बोलो, मैम जेस्चरल प्रॉम्प्ट. हाँ बोलो मोनिका. मैम मैंने ना ये क्वेश्चन उस कॉन्टेक्स्ट में पूछा था कि जैसे आपने बोला ना कि सीक्वेंसिंग जो है वो डेली लाइफ से पहले शुरू करो, और जैसे कि डेली एक्टिविटीज, अगर बॉटल खोलना है तो हम कैसे बॉटल खोलेंगे, पहले ढक्कन खोलेंगे, मतलब पानी पीना है तो हम पहले ढक्कन खोलेंगे फिर पानी तो भरेंगे फिर पिएंगे. तो मैम तो एक्चुअली मोनिका, मतलब सॉरी फॉर, मैं आपको बीच में काट रही हूँ. वो जी बुलवाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पिक्चर लेके और पेरेंट्स. पिक्चर हाँ सीक्वेंसिंग कराओ. मैम एक्चुअली ना मतलब राघव के, मतलब मेरे जो चाइल्ड है उसके साथ ये प्रॉब्लम है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो वो सारी चीज़ों को ना बहुत अच्छे से कर लेता है. और उसका मतलब जो करने का तरीका वो परफेक्शन, मतलब ऑटिज्म में परफेक्शन होता ही है. तो उसको ये लगता है ना मैम कि अगर मैं ये काम इतनी अच्छे से परफेक्टली कर सकता हूँ तो मैं उसको बोलूँ क्यों. मतलब वो बिल्कुल भी मोटिवेटेड फील नहीं करता छोटी छोटी चीजें, मतलब जो मगर मैं उसका लैंग्वेज एनहेंस करने के लिए यूज तो करूँ आप तो मोनिका, वो वहाँ आप पे. साथ में पैरेलल टॉक करो. डोंट फोर्स द चाइल्ड. बोलो बोलो बोलो. मेरे को एक थेरेपिस्ट ने बोला था, लैंग्वेज शुड नॉट बी समथिंग जिसके कारण बच्चा इरिटेट होके बोलना छोड़ दे. दिस इज समथिंग विच रियली स्टक मी, कि ये उसने सही बात बोली. हम क्या बोलते हैं, बोलो, डू अ पैरेलल टॉक. पानी चाहिए, वाह आपको पानी चाहिए, आप बोल सकते थे मम्मा पानी दे दो. आप उसको मॉडल करके दो. द मोर यू मॉडल, द चाइल्ड विल अंडरस्टैंड ये बोलना है. बट बच्चा ग्रास्प तो कर रहा है,
ऐसी कोई चीज मोनिका जो आपको लगता है ही हैज टू स्पीक, सिचुएशन आपको घर पे वो क्रिएट करनी पड़ेगी जो वो इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता। मेक मतलब फॉर एग्जाम्पल आप उसे कुछ सामान निकलवाना है या कुछ चीज चाहिए, या उसका फेविकॉल खत्म हो गया या इरेजर खत्म हो गया या लॉस्ट हो गया, आप छुपा दो। सो आपको वो सिचुएशन बनानी पड़ेगी जहां पे वो बोले, और जहां वो यस मैम, वो ना नीड बेस्ड तो बहुत अच्छे से बोल लेता है, पर ना जैसे मतलब पैरेलल टॉक्स में अगर जैसे कुछ फॉर एग्जांपल जैसे कुछ स्टोरी हम सुन रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आंसर कोई बताएगा, लेकिन हम मतलब अगर उसको और अच्छे से नरेट करें तो वहां पे ना वो लैंग्वेज यूज करने से अवॉइड करता है तो मैम। हो सकता है उसको वो अवॉइड इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे याद नहीं हो, वो रिकॉल नहीं कर पा रहा है। तो आप पिक्चर्स चला चला के करो या विजुअली करा के करो, विजुअल सीक्वेंसिंग पजल्स दे के दे दो और उसको फिर नरेट कराओ। दे नीड अ विजुअल हेल्प इनिशियली कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, क्योंकि क्या होगा ना मोनिका, आप प्रेशराइज करोगे आपकी कंप्लाइंस चली जाएगी, पेयरिंग चली गई ना, मुसीबत हो जाएगी भाई। बहुत मुश्किल से मेन इन्वेस्टमेंट हमारी पेयरिंग की ही होती है माँ के साथ, क्योंकि माँ ही सिखाएगी। तो वो चली गई तो मुश्किल हो जाएगी मोनिका। सो आप पैरेलल टॉक्स करो। अगर आप कुछ रिकॉल कराना चाह रहे हो तो विजुअली हेल्प करके करवाओ। वो उसको चलाओ, कोई पिक्चर चला दो छोटी सी कार्टून और स्टॉप करते जाओ, वॉइस म्यूट कर दो, अब क्या हुआ बोलो। सो डू लाइक दिस वे, वैसे कर सकते हो। ओके, आई होप मैंने ओके, आपको थोड़ा थैंक यू। हेल्प किया। यस मैम, यस मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हाँ जी चाइता। हाँ, निशा ने पूछा है that when I send my 5-year-old to gymnastic class, he doesn't look at the teacher directly when she tells something. हम्म। When she says नया movements के लिए, but she sees the other kids and copy the movement. How to हाँ, teach him to look at the teacher directly and follow her instructions? I'm happy he's looking at the other kid and हाँ, doing. at the That's kids really exactly Yes, wonderful. seeing. He's ma'am. imitating from Yes, peers. Celebrate it. yes, yes, You yes, should ma'am. celebrate. He's imitating Yeah, from peers at the age of 5. Wonderful. yeah. बट अगर टीचर को नहीं देख रहा है, बहुत बार पता है क्या होता है, किसी किसी के फेस से ना बच्चे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं। शायद वो कमांड ऐसे देते हैं या कोई एक ऐसी एसोसिएशन उसकी हुई है जो उसको वो फ्रेंडली नहीं हो रही है, उनको देख के वो याद आता होगा, उसे अच्छा नहीं लगता होगा। माई एडवाइस टू यू इज डोंट प्रेशर हिम। हम बोल सकते हैं बेटा सर की तरफ देख के बात करने की कोशिश करें, सर भी तो अच्छे, एंड ट्राई टू टेल दैट सर इफ यू कैन, कि सर थोड़ा उसको प्रेस कीजिए, थोड़ा पेयरिंग बनाओ हाँ, उसकी, थोड़ी सी हाँ। प्रेजेस आई करवाओगे थिंक ना। मैम, मैम उसको मतलब अंडरस्टैंड नहीं होता है कि वो बोल रही है टीचर, so he cannot distinguish the voices. Already there is so much noise, so Ah, probably it so you gets lost already or answered something. the question yourself. आपने Yeah, but I'm not sure, but इट yeah. इज पॉसिबल, इट इज Yeah. पॉसिबल। सो आप ये कर सकते हो, ब्रेक इट डाउन। जो जो स्टेप्स वो करा रहे हैं, कैन यू गेट अ पिक्चर ऑफ दो स्टेप्स एंड टीच हिम एट होम सो दैट ही इज कॉन्फिडेंट इनफ, सो दैट व्हेन सर गिव्स द इंस्ट्रक्शन ही ऑलरेडी नो सर सबको सामने क्या बात कर रहे हैं। वो इमिटेट इसलिए कर रहा हो क्योंकि उसको सुनने में आवाज क्लैरिटी वो समझ नहीं पा रहा, कैच नहीं कर पा रहा। लेकिन मैंने घर पे अगर वो चीजें प्रैक्टिस कर ली हैं तो कोई भी एक्स वाई Mm. जी बोलेगा मैं तो वैसे ही कर लूंगा। अगर मुझे बोला पेन हाँ, उठाओ, मम्मी बोले पड़ोसी बोले, मुझे पता है पेन उठाओ, सिंपल। हाँ, ये हो सकता हाँ। है, आप जो बोल रहे हो इट्स वेरी मच पॉसिबल। बहुत आवाज में बच्चा हमारा डिस्ट्रैक्ट होता है। तो सर ने कोई कंप्लेन किया है क्या? नहीं, नहीं, मैंने जस्ट चिल ऑब्जर्व मारो ना, किया मैं। तुम क्यों हाँ। परेशान हो रही हो? वो दूसरों से उठा ओके। रहा है, पीयर से हाँ, उठा हाँ, रहा है, बहुत बड़ी हाँ, बात है, अच्छी बात है। Nisha, हाँ, I want to add one thing. Nisha, you can do तो आप घर पे ना उसके साथ डांस करो, मतलब आप एज अ टीचर रहो, हाँ। पीछे कुछ हम्म, म्यूजिक चलाओ एंड देन आस्क हिम टू, शायद उसको पता नहीं चल रहा है कि सर को देख के उसको करना है, इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वेयर द हाँ, इंस्ट्रक्शन इज कमिंग, ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। करेक्ट, तो घर दैट्स अ पे ये वेरी गुड प्रैक्टिस आइडिया। करोगे ना ना तो फिर हाँ, शायद वो इसमें, और बाकी जो फैमिली मेंबर्स है, यू कैन ऑल्सो रिक्वेस्ट देम टू ज्वाइन यू सो दैट वो एक ग्रुप में रहे और he knows that mom is the teacher, I have to follow mom. So अब yeah, जब वो जिम्नास्टिक क्लास में जाएगा तो फिर वो that he can understand that scenario then better. You can हाँ। try that. ओके। यस मैम, थैंक यू। Yeah.
Okay, just last two questions we are going to. Shilpi, do you have time? Yeah, I have. My kid is in third grade in CBSE board. She is finding it very difficult to write long answers and multiple languages. So we are shifting to NIOS for help. Worried about socialization part and also her speech development. ये Okay. पूछा है दिव्या ने. ऑल राइट सो दिव्या सोशलाइजेशन के लिए आप ये मैंने ट्राई नहीं किया बट ये मैंने सब बहुत लोगों से सुना इट्स वेरी सक्सेसफुल एंड क्योंकि आपकी बेटी छोटी है थर्ड में है तो 6 7 8 साल की होगी मैं तकरीबन राइट घर में मेड आती है मेड का बच्चा बच्चा है No, ma'am, there are no maids at our home. No maids, So, because what works wonderfully, what I have seen in most of the parents have done for the social development is they try to teach the maids kids for free. And in return, what okay, they have to do, they have to play with your child. That's a socialization skill. You can try okay, ma'am. that if you can, if possible. Because उनको free में आप पढ़ा रहे हो, tuition आप free में Hmm. पढ़ाओ and socialization ऐसे हो जाएगा. This is for all the parents I am saying. Socialization आपको दिक्कत हो रही है, बच्चा छोटा है, मेड के बच्चे को फ्री में 1 घंटा पढ़ा दो, कुछ नहीं मांगो, मैं पैसे नहीं लूंगी, सिर्फ मेरे बच्चे के साथ 1 घंटा खेलो. डिसाइड योर गोल्स, जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, जो आपको आता है, जैसे ABCD है, दूसरे बच्चे के साथ वैसे खेलने दो. टर्न टेकिंग सिखाओ, वेटिंग सिखाओ, देखो क्या जल्दी जल्दी बच्चे सीखते हैं. सो दिव्या, Okay. इन केस इफ यू कैन मैनेज, मतलब कोई है, मेड नहीं है तो कोई भी पास में प्रेस वाले का बच्चा कोई भी हो, दैट वर्क्स वंडरफुली. Ma'am, but what happens is the place where she is going now, the CBSE school, though they have accepted her without a shadow and other things, they have taken her, they are not ready to take up any of the exemptions that come with the CBSE board. Like even if I say I'm ready to submit the UDID or whatever, if is it possible They to won't. take There are exemption from school अपने हिसाब से चलता है, I know. Yeah. yeah, though they come under the board, they don't do that. So we don't know. Actually, she loves going to that school. So whether Absolutely. taking out of school will help her, that also I'm not sure So whether Abhi, to go what is for. the problem you are facing, Divya? Like she is able to give exams on by herself. Last year was very difficult, ma'am. Like first 2 terms she didn't give. From the third term, she started giving little bit of like certain EC level subjects, which are more of objective type. She was able to do. I'm okay even if she just gives the objectives and come home and don't write long answers. I'm Yeah. absolutely fine. Yeah. But even for those things, the effort that we have to put to, make her understand each concept agree. and go ahead is like very, very, very tough. It's not that even. I will request in case for another 1 or 2 years, if you can manage with the mainstream, that would be great. If you can Okay, manage, ma'am. because as per the school's policy, they cannot fail a child after Okay. a certain class. They cannot fail the child. वो बच्चा अपने आप they can go to the next grade. That's what Okay, ma'am. that's what it is. But see again, it depends upon the school. They can manage as per their convenience. That is When the I went and asked them, problem. because recently shifted to Mumbai, so I just said them ki Hindi is super duper higher level for her. I know it's very So I went difficult. and requested them regarding some, will they form a different question paper, more of objectives without questions, at least for the So same in syllabus, case if will you they get tell a them separate these paper? particular topics, she's comfortable. Don't give why questions. Give what questions. Straightforward questions. They won't do that. They won't No, give ma'am, that. they are not ready to give a separate paper for the same syllabus. They are like, let Okay, her do if the they are second not standard Hindi again. okay, they're not ready to give the separate question paper. Whether the answers will come from the behind the back or from between, कहीं से भी उठा देंगे. Mostly behind only, ma'am, but the questions are all very long, long answers and all that. So Even why can't you make two? How much she can read? You have to check that. वो कितना read कर okay, सकती है? ma'am. How much she can write? Give 2 points. 2 point वाले कुछ answers कर दो. For example, what is the color? What was Sindbad doing? Sindbad sailing boat. Something like that. She's Okay, ma'am. attempting. She's trying. Pointers कर दो. Okay, ma'am. Pointers work wonderfully. Okay, ma'am. बहुत बढ़िया काम करता है पॉइंटर्स. यूज अ हाइलाइटर, हाईलाइट द इंपॉर्टेंट आंसर. घर पे Okay, ma'am. प्रैक्टिस कराओ. अगर दैट्स द रीजन आई आस्क्ड यू, इफ इट्स कमिंग बिहाइंड द बैक कॉपी बुक, तो फिर तो यू हैव गॉट अ प्रेडिक्टेबिलिटी कि तुम्हें इतना Okay, ही ma'am. पढ़ाना है. Okay, ma'am. तो ट्राई, गिव अ ट्राई, बिकॉज द Okay, ma'am. चाइल्ड विल सफर. उसका जो फ्रेंड सर्कल है,
The acceptance Abhi- whatever she must have got. Yeah, it's I'm not not even saying a friend friend circle. circle, but she just really loves going to school She because loves they have going. all those other classes and all. हर दिन का 4 Definitely. पीरियड तो फ्री पीरियड रहता है मैम, जैसे आर्ट्स, ये वो आर्ट क्लास, सिंगिंग Absolutely. और क्लास, उसका they एक go to रूटीन the सेट है, उसका yes, सेट yes, रूटीन है. ma'am, सो yes. वो भी एक फैक्टर रहता है ना. तो कोशिश Okay, ma'am. करो, जो मैंने आपको इनपुट दिया मैंने ऐसे ही Okay, अपने ma'am. बच्चे के साथ किया है. पॉइंटर्स बना दो. सिंबाद Okay, ma'am. सेलिंग सिंपल, आप 2 वर्ड्स में कर दो ना आंसर को. Okay, क्वेश्चन का ma'am. आंसर तो वही है. द सिंबाद वेंट टू द शिप एंड ही वाज सेलिंग True, इन द ma'am. सी. True. उसकी जगह पे सिंबाद सेलिंग. मेक इट छोटा, मॉडिफाई द आंसर फॉर हर. दैट Okay, माइट ma'am. हेल्प. टीचर Okay, मार्क्स ma'am. नहीं काट सकती बिकॉज उसने सही अटेम्प्ट किया है. काटेगा तो भी चल नहीं तो अगर कुछ बोले भी तो यू कैन से मेरी बेटी ने आंसर उसकी कैपेबिलिटी से वो कर तो रही है. Okay, ma'am. Okay, गिव इट ma'am. ट्राई. Sure. Thank you so much, ma'am. मोस्ट Thank वेलकम. you. या Okay. One more question from Vaishali is that a child is associating sitting in classroom to writing only. So he doesn't like to sit in the class and have meltdowns. How can I help? घर पे Writing तो भाई किसी सिखाओ. को भी पसंद नहीं है भाई. राइटिंग तो नोबडी लाइक्स. सो विजुअल स्केड्यूल बनाओ घर पे. घर पे बेसिक ब्रेक डाउन द टास्क. राइटिंग के अलावा दूसरे एक्टिविटीज मम्मी घर पे आप सिखाओ. जैसे कि बीडिंग करवाना. सिटिंग करेगी बीडिंग. बीडिंग इज अ वंडरफुल, मैं बोलना भूल गई उसमें. सिटिंग के लिए बीडिंग बहुत अच्छा चीज है. बिकॉज बीडिंग पहले तो बड़े बड़े देंगे जो बहुत इजली इजली जाए. फिर उस बीट्स छोटी होती जाएंगी जिसमें बहुत मेहनत लगे. बीडिंग में आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी होगा, सिटिंग भी आएगा. थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा. रेगुलर ब्रेक्स दो. मेक श्योर स्कूल में वो ब्रेक्स नहीं दे रहे होंगे. ये भी हो सकता है उसको बिठा के रख No, रहे हो. no, ma'am. He's getting enough break actually. So अच्छा. he's having a lot of movement break, sensory break, everything. But even just 10 minutes, he doesn't want to sit in the class because he thinks like they will start give writing. He's in a first standard actually. So he thinks that I have to write now. So he doesn't want to sit at all in the class. नहीं तो वो टीचर को बोलना पड़ेगा कि इसको फिलहाल के लिए राइटिंग का काम मत दो. फिलहाल के लिए मत दो. एंड यू स्टार्ट टेकिंग द इनिशिएशन एंड स्टार्ट टीचिंग हिम. घर पे आप कोशिश करो उसको राइटिंग का कैसे घर पे कराने के लिए. जैसे मैंने कहा सेंसरी ट्रे देके उसमें स्क्रिबल करने दो. शायद उसको राइटिंग में आई हैंड कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ रही है. घर पे आप स्केच पेन्स ले लो या हाइलाइटर लेके बिग बॉक्सेस बनाओ. उसको स्कैनिंग में दिक्कत हो रहा होगा. चेक इट. चेक विथ योर ओटी एज वेल. स्कैन करने में Okay. उसको दिक्कत हो रहा है. क्या उसको स्कैन में दिक्कत हो रहा है, लिखने में ग्रिपिंग में दिक्कत हो रहा है. चेक विथ दोज थिंग्स क्या दिक्कत आ रही है. चेक दैट वे. उससे चेक करो. घर पे आप पहले हर एक कॉन्सेप्ट ना वैशाली आपको पहले घर पे देना पड़ेगा. तभी वो जनरलाइज स्कूल पे करेगा. तो वहां वो सब बच्चे कर रहे हैं, शायद वो लेफ्ट आउट हो रहा है. उस टाइम पे उसको कोई पजल दे दे टीचर. कुछ एक पजल एक्टिविटी दे दे जिससे कि उसको वो अच्छा लगे, जो उसको पसंद आ रहा है. एटलीस्ट वो सिटिंग तो करना शुरू करे. मीनवाइल आप घर पे राइटिंग, स्क्रिबलिंग, ट्रेसिंग जैसे मैंने बोला ऑन अ सैंड पेपर और समथिंग उसमें आप शुरू करो. एंड फाइंड चेक करो उसको. ओटी से आप चेक करो उसको दिक्कत किस में आ रही है. चेक करो. आई Yes, हैंड. ma'am. Like I think he's having an issue with the kind of a grip as well as a shoulder, this one stability as well. Absolutely. So I'm तो working on that at home as well. So maybe I'll try whatever ideas you एंड have तारीफ given. करो. गिव अ मोटा पेंसिल टू राइट. डोंट गिव दोस पतला पतला Okay. वाला. मोटा पेंसिल Okay. जिसमें उसको ग्रिपिंग हो. मोटे वाले क्रेयॉन्स जिससे वो कलरिंग करने में उसको इजी. डोंट गिव द स्मॉल वन. द मोटा वाला जो जंबो क्रेयॉन्स आते हैं ऐसे मोटे से होते हैं. तो उसमें Yes. थोड़ा सा ही ना वो बहुत अच्छे से द कलरिंग कैन स्टार्ट. आस्क द टीचर टू गिव सम कलरिंग एक्टिविटी व्हेन शी इज गिविंग अदर किड्स सम राइटिंग. सो अभी उसको बड़ा एक पेज दे दो. उसमें आप घर पे उसको स्क्रिबल करने दो. मेक इट कंफर्टेबल. अभी उसको बिठाना इंपॉर्टेंट है. राइटिंग आ जाएगी. पहले वो बैठे. बैठे नहीं तो वो बैठेगा नहीं तो हम लर्निंग नहीं करा पाएंगे. तो Yes. वर्क ऑन दोज एंड रीइंफोर्स द चाइल्ड. बहुत तारीफ टीचर को बोलो करने के लिए जैसे ही वो थोड़ी देर के लिए भी एक पजल बना रहा है. वर्क ऑन दोज एरियाज. दैट Sure, ma'am. ग्रेजुअली इट्स अ प्रोसेस वैशाली. Yes, डोंट ma'am. वरी. सब Okay, ma'am. बच्चे बैठते हैं. सब बैठेंगे. डोंट वरी एट ऑल. आज तक Okay. तुमने कहीं सुना है कोई बच्चा कंटिन्यूस वॉक कर रहा है? बैठेगा. थोड़ा टाइम लगेगा. आराम से बैठेगा. Okay, ma'am. Okay, Okay. just Sure, last will do. Thank you. question, and then one question we'll take from the audience if anybody has a question. So one of the last question is that I have an 8-year-old non-verbal
child at initial level of AAC. Can you please explain what is digital literacy with AAC? ओके, डिजिटल लिटरेसी एएसी में हम ये करते हैं, आवाज ऐप आप लोगों ने सुना होगा। मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जो नॉन वर्बल हैं, लेकिन दे आर फैंटास्टिक इन यूजिंग आवाज। दे नॉट ओनली नीड बेस्ड, हमारे बच्चे हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस कराते हैं जिसमें हमारे बच्चे आवाज यूज कर रहे हैं। डिजिटल लिटरेसी इज एज ए मैं वोकेशनल रिहैबिलिटेशन में भी हूँ, तो हम डिजिटल लिटरेसी में ये करते हैं कि जो भी कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो, फॉर एग्जांपल ABCD हो, XYZ आइडेंटिफिकेशन, फार नियर बिग, जो भी आप दे दो, प्लस माइनस, वो हम कंप्यूटर में बच्चे को कराएंगे। क्योंकि हमारा बच्चा लिखने में स्ट्रगल कर रहा है, नहीं लिख पा रहा है, उसको दिक्कत हो रही है। सो हम वही चीज कंप्यूटर में सिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ एन आवाज। बच्चा आइडेंटिफाई करेगा आवाज के थ्रू, और फिर वो उसको विद द हेल्प ऑफ अ टाइपिंग करेगा, यूज द लाइन टूल टू मैच, एक्सेल बनाएगा, एक्सेल शीट्स बनाते हैं हमारे बच्चे, पावर पॉइंट बनाते हैं, बिकॉज यही लाइफ फ्यूचर है। आप पढ़ा लिखाने के बाद भी बच्चा, अगर हम, क्योंकि अभी हर किसी को कंप्यूटर की नॉलेज इंपॉर्टेंट है, सो इसलिए कंप्यूटर के थ्रू हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं। कंप्यूटर के थ्रू एंड आवाज के थ्रू ही इज एबल टू स्पीक, द चाइल्ड इज रिसेप्टिव यूजिंग ऑल एवरीथिंग with the help of a आवाज, स्टोरी से लेके everything. So that's how we do it. This is digital literacy. Yes, Nanda has raised her hand. Yeah, please go ahead. Ma'am, the session is too good and I'm very much impressed. Actually, मेरी रिक्वेस्ट है, आप अगर फ्यूचर में वोकेशनल रिहैबिलिटेशन और प्ले थेरेपी पे भी अगर सेशन दे पाओ तो बहुत अच्छा होगा। Surely, I will क्या keep it in mind. बहुत Definitely. अच्छा करते हो, मतलब इतनी शॉर्ट टाइम में पूरे सारे पॉइंट्स आपने बहुत बढ़िया से कवर किया है। Thank you. Thank you so much. Gratitude. Thank you. Thank you. Anybody else? Anybody wants to ask? Just last, no? We're not, it's already 8:23. मेरा बेटा हाँ। दरवाजा ठोक के गया, मम्मी 8 बज गए। नहीं, मेरा वाला वेट कर रहा है। मेरा वाला ढम कब मारता खाना है। मिलेगा करके। चलिए, I think nobody has any questions. I'm not able to see, but guys, she is part of a group. अगर कुछ भी इस सेशन से related कोई भी doubt आता है, feel free to just put in a message. We're not going to take any more questions right now. So in the end, I'll just say thank you so much. I knew this session is going to be great, but it is really amazing. Thank you so much. And we look forward. We have already had a conversation about vocational. We are going to take up in the coming months. इस साल में रखेंगे हम बिल्कुल, because vocational is सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. Play skills also. हाँ, I am a play therapist will also, do. so yeah, definitely in the Yeah, we future will we do can do it. play therapy के related. Yes, yes. So it will be helpful for everybody, because therapy जब start होता है हम भूल जाते हैं सबसे जरूरी कि we have to play. प्लीज मेरी सब So- पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है, मत भूलो कि वो एक बच्चा है। हाँ, सो exactly. इंजॉय द प्रोसेस। अब प्रेशर में मत आओ, हम अभी भी प्रेशर में है, लाइफ में प्रेशर ही रहता है, बट बच्चा तो बच्चा है, वो तो इंजॉय करेगा। सो प्लीज इंजॉय द प्रोसेस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दे दे के किया, यू हैव टू, एंड गोल एज अ मदर आपका होना चाहिए कि आप उसके रीइंफोर्सर्स बनोगे। रिमेंबर दैट्स इट। वो रीइंफोर्सर तभी बनोगे जब आप हमेशा चौपी रहोगे, खुश रहोगे, इंजॉय द प्रोसेस, हर एक चीज को इंजॉय करो। Yes. राइट? ऑल Thank you so much, Shilpi, and we will be in touch. And thank you everyone. बहुत सारे लोग they are still there. It is really great that we still have almost all of the participants who joined us in the beginning. So it just shows that Thank you it so was much. really useful. Thank you so Thank you. much. It was wonderful, Shilpi. Thank you so much. Thank you. Thank you, you too, because it was my first webinar. You guys kept on boasting me कि नहीं, कर लो कर लो कर लो. Thanks a ton to you too a हमें तुम lot. पे भरोसा था. आशीर्वाद. Okay, thank you. Debo. Thank you, Okay, Chaitra. bye-bye. Thanks a lot. Bye. Thank you, Okay जी. Chaitra. Welcome, most welcome. Yeah. Bye-bye. चलो जी. Bye. Bye. Bye.